Welcome friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator for today's webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the MCs as well as the CHS members. It has very simple language articles, draft of applications, webinar videos, and more will be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical, or say non-legal language and can be understood by all. We have also created a WhatsApp group and we invite you to join our WhatsApp group by sending an WhatsApp message on 9820174108. Before we start, a half-minute intro preface on the parking issue. टिपिकली CHS सोसाइटीज में ये सोचा जाता है कि मैंने पार्किंग खरीद लिया हुआ है। आप दोस्तों को ये बता दूं कि स्टिल्ड पार्किंग हो या पोडियम पार्किंग हो या बेसमेंट पार्किंग हो या ओपन पार्किंग हो या कवर्ड पार्किंग हो, ये खरीदा बेचना, गिफ्ट करना, लीज करना, रेंट करना, जो भी कुछ है वो अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज ये सारे पार्किंग के डिस्क्रिप्शंस दे डू नॉट कंज्यूम फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI। द गोल्डन रूल इज, अगर FSI कंज्यूम नहीं हुआ है तो सेल परचेस of this parking spaces is not allowed. However, you can definitely get an allotment letter either from the developer builder or from the society by following procedures of law. So when you buy a flat, let us say अगर 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट बाय किया है तो आपके एग्रीमेंट में 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट के ऊपर आपने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी भरा है, उसी का मालिक हो आप। पार्किंग स्पेस के आप मालिक नहीं हो सकते। तो इन अदर वर्ड्स, पार्किंग स्पेस का मालिक है कौन? पार्किंग स्पेस का मालिक वो संस्था है, इन दिस केस, टुडेज केस, हाउसिंग सोसाइटी है या कॉन्डोमिनियम है या रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है। दे आर द डीम्ड एंड राइटफुल ओनर्स ऑफ ऑल द कॉमन स्पेसेस इन द सोसाइटी। कॉमन स्पेसेस में स्टिल्ड, पोडियम, ओपन, कवर्ड कार पार्किंग वगैरह वगैरह सारा कुछ आ जाता है। बाकी और डिटेल्स के लिए वी विल इनवाइट आवर टुडे स्पीकर who will give you more detailed information on various parking issues. Now, on behalf of all our participant friends, I invite today's speaker, Advocate Ketki Agarwal. Advocate Ketki madam practices law in Mumbai for the past 23 years and specializes in civil and criminal writ petitions, contempt petitions, bail, anticipatory bail petitions, and also is a consultant in various housing society related issues. Advocate Ketki will share her knowledge on various possibilities and legal remedies on today's topic, which is parking space, today's part 2, buying allotment, charges, disputes, laws, etc. On behalf of all the participant friends, we welcome Advocate Ketki Agarwal and request to share her knowledge with all of us. Over to you, Ketki ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Hemant sir. And a warm welcome to the lovely audience once again. And today we are going to have a detailed discussion, a concluding part, I would say, of the parking, which is a very, very vast topic. So to begin with, friends, once the builder completes his project and hands over to the LOT members, and they duly form a cooperative housing society, they register themselves as managing committee general body, take over the charge of the newly formed society. What are the functions of the managing committee? We will begin from there today. So to begin with, now the managing committee is supposed to adhere to the parking as approved under the LOP. The LOP is the layout plan which was approved
and sanctioned by the BMC, by the DCR rules, by the Fire Act rules for the builder. They are supposed to follow and adhere to the same norms and see to it that the parking is continued to be allotted and you enjoyed by the residents in respect of every unit occupied by the residents. What is the thumb rule which I said last time? If you remember, the first thumb rule was one flat, one car parking. How is it supported by law? Very important. हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ थोड़ा सा कोई भी कानून अगर सामने वाले को पसंद नहीं है तो फट से एक सवाल आता है, कहाँ लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी है, मैं जिधर चाहूँ वहाँ पार्क करूँगी, मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक मोर ऑन दिस थंब रूल कि मैनेजिंग कमेटी को इस थंब रूल को इम्प्लीमेंट करने में वो कौन से 4 जजमेंट्स है, वो कौन से रूलिंग्स है बॉम्बे हाई कोर्ट के जो मैनेजिंग कमेटी के हाथ को ताकतवर बनाएंगे इस थंब रूल को पालने में और इस सोसाइटी अपने सोसाइटीज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन देने में. बेटर एडमिनिस्ट्रेशन देने का मतलब, एज आई हैव टोल्ड यू द लास्ट टाइम, इज टू फर्स्ट कंट्रोल the encroachment on each other's parking. So we are also going to understand how this encroachment happens. कब कैसे होता है ये encroachment? हो सकता है हम नेबर्स ही एक दूसरे के गाड़ी के पार्किंग के ऊपर अपनी दूसरी गाड़ी अपना स्टेटस दिखाने के लिए ले आए और लगा दे, चलो देखा जाएगा कौन मुझे रोकेगा. कभी कभी हम लोग एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन कर एनक्रोच करते हैं. Sometimes it so happens that the husband owns a car, he is already enjoying the parking allotted to him. Then the wife's brother comes with his car, and without taking prior permission, without even intimating the managing committee or the office bearers, they take advantage of ignorance on part of the security और एनीबडी एंड स्ट्रेट अवे जहाँ ओपन स्पेस देखा वहाँ अपनी गाड़ी लगा दी. फिर वो गाड़ी का पार्किंग फ्लैट नंबर A304 का हो या 504 का हो, गाड़ी लगाया और सीधा ऊपर पार्टी करने भाई साहब पहुँच गए अपने बहना के घर एंड वहाँ से एनक्रोचमेंट शुरू हो जाता है. एक बार लगा, दूसरी बार लगा, आखिर में भुगतता कौन है? भुगतता है ऑफिस बेयरर्स, भुगतते हैं वो गार्ड्स बेचारे कि मेरी पार्किंग तूने कैसे जाने दिया. झगड़े एंड पीस जो है डिस्टर्ब होता है, झगड़ों की शुरुआत यहाँ से होती है. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एनक्रोचमेंट. वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. द इन सिंपल लैंग्वेज अतिक्रमण जिसे कहते हैं हिंदी में और मराठी में, एनक्रोचमेंट को मैं अभी अच्छे से आपको समझाती हूँ. द इजिएस्ट वे to understand encroachment in a real estate is to envision a line drawn in the sand. लाइन के इस पार का जितना है वो जगह मेरा, लाइन के उस पार जो है वो आपका. जहां मैं उस सीमा को लांघती हूँ, उस लक्ष्मण रेखा को लांघ के आपके हद में प्रवेश करती हूँ, आई एम दी एनक्रोचर. मैंने आपके एनक्रोचमेंट पर अटैक कर दिया. इन सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ. तो ये एनक्रोचमेंट जो होता है, दिस इज क्रॉसिंग ऑफ द बाउंड्रीज गिवन टू यू, allotted to you, and unlawfully without due permission entering upon the boundary allotted to someone else. This is nothing but is called as the encroachment. अब इसको हैंडल करने का जो है वो पूरा प्राइमा फेसी, बिफोर यू गो टू एनी फोरम, before you approach the consumer court or cooperative court or Maharera court or whatever, prima facie इसका solution कहीं और नहीं है, आपके सोसाइटी के कमिटी के पास ही है. The bylaws 164 under which the society functions, इसके नीचे जो है under these bylaws 164, the managing committee is empowered to levy penalty. It is having 2 options, either 5 times of maintenance, this is applicable even to car parking, or to levy a penalty of rupees 5,000
for any one financial year on the encroacher, so that he doesn't continue doing this wrongful deed and cause inconvenience to the others. So this is how it is handled. Now coming back to where exactly this issue starts nurturing more in a cooperative housing society. So it is where the visitors parking is not taken care of by the managing committee. So the DCR rules have made it mandatory for all residential complexes. Now, regarding the visitor parking, the views taken under different acts and statutes are different. We should first know that. What does the RERA Act say? What does the Development Control Act say? Let us first understand how the views are different under the different norms. So, MahaRERA, जो आजकल हम सुन रहे हैं, MahaRERA has strictly given no provision for visitors under its act. It doesn't recognize visitors parking. MahaRERA Act. अभी जितने भी बिल्डिंगें आ रही है वो MahaRERA रजिस्टर्ड आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक का थोड़ा सा जो है विश्वास थोड़ा डगमगाया है बिल्डर्स पर से. तो पब्लिक वुड लाइक टू बुक अ फ्लैट इन द प्रोजेक्ट विच इज MahaRERA रजिस्टर्ड. तो आप पहला ये समझ के चलिए कि MahaRERA डज नॉट रिकॉग्नाइज विजिटर पार्किंग एट ऑल, whereas DCR has made it mandatory for the builder to first ensure that at least initially जो रिजर्वेशन था विजिटर्स के पार्किंग के लिए, इनिशियली इट वाज 25% फॉर आइलैंड्स, 10% फॉर सबर्ब्स, एंड नाउ अभी ऐसा चल रहा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस. द DCR इज इन मूड ऑफ पुलिंग डाउन दिस 25% ऑफ रिजर्वेशन टू 5%, क्योंकि सब लोग गाड़ियां ले रहे हैं. इस मॉडल की गाड़ी आ गई, मेरे को ये मॉडल की भी गाड़ी चाहिए, मेरे बेटे के लिए भी एक गाड़ी चाहिए, मेरे बीवी के लिए भी एक गाड़ी चाहिए, मेरी बेटी कॉलेज जा रही है अभी उसको भी एक गाड़ी दूंगा. तो ये क्या हो रहा है, डिसिप्लिन कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है हमारे अंदर डिसिप्लिन बिगड़ रहा है. व्हाट विल अ प्रॉम्प्ट एंड अ प्रूडेंट पर्सन डू? आपको गाड़ी दूसरी मॉडल की लेनी है, आप पहले वाली बेचिए और बेचकर उसके जगह पर दूसरा लाइए ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो. दिस इज व्हाट शुड बी फॉलोड. लेकिन हम में से कोई ये फॉलो करता नहीं है. अरे उसने 4 गाड़ी रखी तो मैं भी 5 रख के दिखाऊंगा, मैं उससे कम हूँ क्या? ये एक दूसरे के ऊपर कंपटीशन करने की जो भाव है, इसमें जो है ये विजिटर कार पार्किंग के भी स्पेस कम पड़ने लगे. दैट इज वाई DCR मेड अप अ माइंड कि अभी ये भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर के पास ऑलरेडी बिल्डर टावर्स बनाते जा रहा है. स्पेस जो बचा है, अगर समझ लीजिए अगर उस टावर में हो सकता है 165 घर बन रहे हैं, उसके पास जो है जगह बची है, ही कैन ओनली अकोमोडेट 120 कार्स इन इट. अब समझ लीजिए, अब उनमें से 120 तो ले जाएंगे, 165 में से जो ऑक्यूपेंट्स रहेंगे, फिर भी बाकी बचे हुए लोगों को बाय लॉटरी वगैरह अगर निकला कुछ तो एडजस्ट होना पड़ेगा. तो ऐसे में अगर विजिटर कार पार्किंग भी कट शॉर्ट किया गया तो कैसे होगा? So against this move, there was a public interest litigation also filed. All the judgments will be discussed in detail at the concluding part of this session today to make things very, very clear to you. So now the things are very to come up to the point that DCR recognizes visitor parking. MahaRERA does not recognize visitor parking. First, let us understand that. Now, there are people who suffer because of they not getting parking. How do they suffer? Let us first know that. Suppose you have booked a flat in a project which is MahaRERA registered. Builder is not giving you the parking which you are entitled to. So where do you go? So your grievance goes to before the MahaRERA forum. Suppose you have booked a flat in a project which is not registered under MahaRERA and you are denied parking by the builder, you are not given, or your parking is sold to anyone else. घर आपको बेचा और पार्किंग किसी और को बेच दिया, अब कहाँ जाओगे? There you have to redress your grievance before the consumer forum. अगर सोसाइटी बन चुकी है सर,
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अस्तित्व में आ चुकी है, मैनेजिंग कमिटी हैज टेकन ओवर फ्रॉम द बिल्डर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड बाय द मैनेजिंग कमिटी। एंड उसके बाद आपको जो है आपका पार्किंग या तो एनक्रोच हुआ कहो, या तो आपको मिला ही नहीं, जो पेपर में लिखा था वो पार्किंग किसी और ने ले लिया अपनी दूसरी गाड़ी लाके, वेयर विल द अग्रीव्ड पर्सन गो, कहाँ जाएगा ये? तो फर्स्ट, तो पहली बात तो अगर शांति से इस मामले को निपटाना है, प्लीज गिव इट अ ट्राई टू द ऑफिस बियरर्स, सी टू इट दैट यू आर हर्ड, गिव अ रिटन कंप्लेंट टू द सेक्रेटरी requesting him to issue a show cause notice to the encroacher after consultation with the general body managing committee why action should not be taken against the encroacher under 164A, why penalty should not be levied. Let them go step by step. If the problem is solved at the grassroots level itself by the managing committee, so you are fine, you are ending up in a better manner. But suppose the managing committee turns a deaf ear to your request, then you are left with no alternative but to approach to the cooperative court to redress your grievances. This is the law. Now, as I told you, the maximum penalty for encroaching upon your parking, you can either impose rupees 5,000 during any one financial year or 5 times the maintenance. Encroachment, if an encroachment on car parking is done, if an encroachment is done on a car parking, it is the duty of the managing committee to personally see to it that matter does not stretch far and it is restored to the proper person, to the rightful owner, to the deserving member of the society. Why do these encroachments happen? हमें ये समझना है पहला, ये होता क्यों है, किस तरीके से होता है। पहली तो बात यह है कि many a times the owners or the tenants are ignorant about the clauses made out in the sale deed, the clauses made out in the leave and license agreement, and they are arrogant, they are adamant, they don't want to abide by the terms and conditions of the agreement, and they definitely do this, or they haven't read the, we would say they don't know that they are supposed to be in a disciplined manner, the behavior is requested from that, which they are supposed to behave properly. तो वो लोग कर देते हैं। इस तरीके का एंक्रोचमेंट जो है तभी होता है जब किसी तरीके का अज्ञातावश जो है इंसान कोई कदम उठा लेता है। द लॉ सेज इवन इफ यू वांट टू पार्क अ टू व्हीलर, यू शुड इन्फॉर्म द मैनेजिंग कमिटी। टू व्हीलर का भी आरसी बुक हो या फोर व्हीलर का भी आरसी बुक हो, सारे पेपर्स लेना और उसको पार्किंग देना, पहला तो प्राइमा फेसी काम ये मैनेजिंग कमिटी का ही है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कार के लिए पार्किंग बचा है, एज आई टोल्ड लास्ट टाइम इन द पार्ट 1 सेशन, कि उनको जो है एप्लीकेशन नोटिस बोर्ड पर ये बात को जो है अनाउंस करना है कि भाई हमारे पास इतने एक्स्ट्रा पार्किंग जो है खाली पड़ी है, अगर कोई हमारे जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन में पास हुए मुताबिक चार्जेस देने को तैयार है, तो वी आर हैप्पी एंड ग्लैड इनफ टू अलॉट द सेकेंड कार पार्किंग स्ट्रिक्टली ऑन पे एंड पार्क बेसिस। तो ये सारी चीजें जो है लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अब ये चीजें अगर नए आने वाले टेनेंट को मालूम नहीं है और ही टेक्स थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और धीरे धीरे एक गाड़ी ले आएगा, इंटरव्यू में बोलेगा नहीं मैं एक ही गाड़ी रखूंगा, उसके बाद जो है वो धीरे से 6 महीने बाद दूसरी गाड़ी ले आएगा, एंड उसके बाद जो है दिस इज हाउ ये बढ़ते जाएगा फिर। सो दिस इज हाउ एनक्रोचमेंट्स हैपन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभार ऐसा भी हुआ है, सुनने में आया है कि कुछ सोसाइटीज जो है अगर कोई ड्यूज बाकी है या कोई भी वजह से या एनक्रोचिंग हो गया है पार्किंग स्पेस पर, तो टू टीच लेसन द ऑफिस बेयरर्स हैव गॉन अहेड टू इवन फासन द व्हीकल विथ चेन, जिसे क्लैंपिंग कहते हैं, एंड टू सी टू इट दैट दे फोर्सिबली जो है व्हीकल का पोजीशन विथहोल्ड करते हैं, ताकि सामने वाला जिसने गलती किया है ही कम्स टू हिज नीज। बट इज दिस करेक्ट? No, this is not correct. This is absolutely not acceptable. And इसमें क्या है, the aggrieved party has an option to approach the nearest police station to file an FIR कि मेरा मूवेबल जो है फोर्सिबली डिटेन किया गया है, मेरा जो है व्हीकल को क्लैंपिंग किया है, आप FIR करो
और आप जो भी कमिटी के ऑफिस बियरर्स हो उनके ऊपर जो है आप एक्शन ले लो. व्हाट एक्शन कैन द लोकल पुलिस टेक? इट कैन इवन फाइल एन FIR. इट कैन ऑल्सो लेवी पेनल्टी अगेंस्ट ईच पर्सन सेपरेटली. तो ये इस तरीके से जो है ये गलतियां हो सकती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड what does encroachment say in view of BMC Act. Section 314 of the BMC Act well defines encroachment. ऐसे क्यों होता है कि आप गाड़ी शॉपिंग करने के लिए कार लेकर गए और आपको लगा कि यहाँ कोई मुझे देखेगा नहीं, फटाफट से कार लगा दिया और झटपट से मॉल में चले गए. बाहर आने तक आपकी गाड़ी टो करके जो है BMC वालों ने उठा ली एंड आप ढूंढते रह गए गाड़ी कहाँ गई मेरी. कैसे मालूम पड़ा? या तो टोइंग व्हीकल्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स है BMC के, वो लोग घूम रहे हैं रोड के ऊपर ये देखने की नो पार्किंग जोन में किसी ने गाड़ी तो नहीं लगाई, या तो आपकी गाड़ी को कैप्चर किया है BMC के CCTV में. देन यू फाइनली लैंड अप सीइंग अ मैसेज ऑन योर मोबाइल, आपका गाड़ी इतने तारीख को इतने बजे इस पोजीशन में इस लोकेशन पे पाया गया. वो फोटो का लिंक भी रहता है उसमें. आपको अगर छुड़ाना है तो चलन निकाला गया है, आप ये जो है इतने का चलन जो है काटा है, आप इसका जो है पेमेंट करो और अपनी गाड़ी छुड़ा के ले जाओ. So BMC deals with under section 314 with the encroachment, that is parking in no parking zone, parking in hugely crowded roads, making it difficult for the pedestrians to walk when there is a traffic jam road. This already has become a big headache to the BMC. गाड़ियां इतनी हो गई है कि हाईकोर्ट ने यहाँ तक बोलिया कि अभी गाड़ियां लेना बंद कर दो, ज्यादा गाड़ियां मत लो, यू शुड नॉट गेट बाय मोर व्हीकल्स, ये भी बोला गया है. सेकेंडली BMC को सेक्शन 381 के तहत न्यूजेंस एलिमेंट से डील करने का भी अथॉरिटी है. इसलिए आपके गाड़ियां रातों रात या दिन दहाड़े उठाई जाती है. फिर हम लोग जो है बोलते हैं यार ये BMC वाले परेशान कर रहे हैं. आप गलत कहाँ हो पहला वो सोचिए, आपने गाड़ी कहाँ लगाई थी. दिस इज ऑल दैट वी आर सपोज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड. Now there are also different norms to park your vehicles in a society or in an apartment complexes, cooperative housing societies में अलग अलग तरीके के पार्किंग के डिजाइन फॉलो किए जाते हैं. जैसे नाउ देर कैन बी एन एंगुलर पार्किंग, एक एंगुलर पार्किंग बोल के है कि ताकि एक ही एंगल में गाड़ियां एक ही तरफ एक ही दिशा में पार्क हुए और रिवर्स में निकले और स्विफ्टली जो है ड्रिवन आउट कर सके. एक सिस्टमैटिक पार्किंग का रूल को फॉलो करने के लिए देर इज ऑल्सो एंगुलर पार्किंग विच इज फॉलोड दीज डेज. अ फैशनेबल वे टू पार्क योर व्हीकल्स इज एंगुलर पार्किंग. सेकेंडली देर इज परपेंडिकुलर पार्किंग. राइट एंगल पे 90 डिग्री पे गाड़ी सीधा जो है वॉल के 90 डिग्री पे लगा दो, रिवर्स लेकर निकल जाओ, दैट इज द परपेंडिकुलर पार्किंग. Then there are also parallel parking norms followed by certain cooperative housing societies. वो लोग डिजाइन करते हैं डिमार्केट करके स्लॉट्स को और वो हिसाब से जो है आपको जो है उसी स्टाइल में सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करके, ऐसा नहीं कि सब गाड़ियां उत्तर के तरफ मुंह करके है तो आपकी अकेली गाड़ी पश्चिम के तरफ मुंह करके लोगों को असुविधा करने के लिए टेढ़ी खड़ी हो जाए. तो यार व्हाट हैपेंस, द मैनेजिंग कमिटी इज आल्सो एंटाइटल्ड टू लेवी पेनल्टी फॉर disobeying the rules bylaws of the society. So in today's session you are going to realize what are the small mistakes which cause big nuisance to others just because of we trying to behave arrogant, ignorant and indisciplined fashion of living. Now there is one more question. Can someone cover up a parking or use it as a godown, storage godown? Answer to this is no, you cannot do that. If it is a parking, it is a parking. आपकी गाड़ी है, आप यूज कीजिए. आपके पास गाड़ी नहीं है, आप सीधा बिल्डर आप सोसाइटी को दे दीजिए. वो सोसाइटी की जगह है, आपकी नहीं है. As rightly said now, just a few minutes back, before the honorable host, हम लोगों ने हमारे फ्लैट के पैसे दिए हैं. ये बात भूलना मत. जहां आप ये भूलोगे वहां आप जो है खुद के लिए भी परेशानी लाओगे और वातावरण खराब करोगे. सोसाइटी का वातावरण खराब नहीं होना चाहिए.
सोसाइटी में क्या होता है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपस में समझ कर चलना है, एक बड़े फैमिली के जैसे। यहाँ हर कोई अगर लग चलाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर विल बी अफेक्टेड वेरी वेरी बैडली। हाउ टू कीप चेक ऑन ट्रैक ऑफ द व्हीकल्स एंटरिंग इन द पार्किंग स्पेस। अब दिन रात तो चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये की मेंबर्स तो बैठ नहीं सकते गेट पर, किसकी गाड़ी ओनर की है, किसकी गाड़ी जो है विजिटर की है, गेस्ट पार्किंग क्या है। तो दिस इज टोटली, एक्चुअली ये क्या है, जब भी जितने भी सोसाइटी की गाड़ियां है उनका एक आरसी बुक रजिस्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर, ये करना ही होगा। RC book of all car owners be called for, and parking stickers of the cooperative housing society be given. This is where you are able to differentiate between society की गाड़ी कौन सी है, विजिटर की या गेस्ट की गाड़ी कौन सी है। जो गाड़ी के ऊपर स्टिकर नहीं है, डेफिनेटली दैट इज नॉट बिलोंगिंग टू योर सोसाइटी। तो ये तो गार्ड का काम है, फिर आगे सिक्योरिटी का काम है, कितने घंटे के लिए गाड़ी पार्क हो रही है वो पूछकर उस व्हीकल को जो विजिटर के लिए रिजर्व पार्किंग है उधर ही लगाना है, किसी और के दिए हुए अलॉटमेंट में नहीं लगाना है। सो दीज थिंग्स आर ऑल टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द ऑफिस बेयरर्स, बाय द मैनेजर। Priority is to be given while allotting second car parking to the residents only. Tenants का राइट क्या है? टेनेंट का एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में अगर उसके ओनर ने उसको कबूल किया है अपना पार्किंग यूज करने देने को, तो उसका पार्किंग उससे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था, अगर उसने जानबूझ के ऐसा ही टेनेंट देखा है जिसके पास कार ही नहीं है, क्योंकि उसकी सेकंड कार जो है रोड पर खड़ी ना रहे, तो इन दैट केस उसके राइट्स उसके घर के थ्रेशोल्ड तक है, ही कैन एंजॉय ऑल हिज राइट्स एज अ टेनेंट। एक पार्किंग तो उसको उसके लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के साथ फ्री मिलेगा और उसको करना है वो यूज। लेकिन अगर उसके पास भी दूसरी गाड़ी आती है बाद में, तो इन दैट केस जो भी है प्रायोरिटी जहां तक हो सके विल बी फॉर द ओनर्स and thereafter. This is all totally discretionary with the managing committee. Please remember that पहला देखो एक सिद्धांत है, पहला अपना पेट भरना चाहिए। आप खुद को भूखा रखकर तो आप अन्नदान करोगे नहीं ना, सिंपल है प्रिंसिपल ये। तो दैट इज एप्लीकेबल इवन फॉर द सोसाइटी, कि पहले अपने जो रिसाइडिंग मेंबर ओनर्स है उनके पार्किंग के जितने भी रिक्वायरमेंट्स वो पूरे होने के बाद अगर बच गया फिर भी एक्स्ट्रा पार्किंग, तो फिर जो टेनेंट डिजायरस है सेकेंड पार्किंग के नॉर्म्स को फॉलो करके पूरे साल भर का पेमेंट करने को जो टेनेंट रेडी है हैप्पीली जो देने को तैयार है एडवांस में पेमेंट एज कॉल्ड फॉर बाय द जीबी मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स, he is ready to fulfill all the formalities, furnish his RC papers in respect of the second vehicle, then he will be given the second car parking. एक तो वो एंजॉय करेगा, वो हक कोई नहीं निकाल सकता। फिर भी अगर बाय चांस किसी ओनर के वजह से उसका जो हक है वन फ्री कार पार्किंग का एनक्रोच हो चुका है, तो देन इट इज फॉर द ओनर to take the appropriate proceedings in this matter, whatever legal action against the encroacher, give a warning letter on his own behalf, ask the secretary to issue a warning letter, call for a personal hearing, and thereafter proceed ahead. So these are the things. Now the very important thing, क्या management deposit ले सकती है parking का? इसमें क्या है अभी actually Bylaw 139 restricts the managing committee from taking any sort of deposits. लेकिन कुछ सोसाइटीज में ले रहे हैं, कुछ सोसाइटीज में 50,000 से 5 लाख तक रिफंडेबल डिपॉजिट भी लिया जा रहा है। शायद वो लोग ये सोचकर भी ले रहे होंगे कि सपोज मे बी अगर 6 months का अगर रेंट ले रहे हैं उसमें से एक आध चेक बाउंस हो गया वगैरह, सो दैट कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द डिपॉजिट। मे बी दे आर ट्राइंग टू सेफगार्ड देयर रेंट, but it is not allowed. You cannot take deposit. Definitely you can charge for the second parking, which has to be strictly pay and park. How much should be this pay and park rates? Let us come to that.
हर कोई सोचता है यार मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो कितना पार्किंग लगेगा, मेरे को दूसरे गाड़ी का कितना लेना पड़ेगा। तो आई हैड ऑल्सो मेंशन्ड लास्ट टाइम कि अपने को उस एरिया को मेंटेन करने में सोसाइटी को जो एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ेंगे, फिर वो सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, एवरीथिंग, सब कुछ आ गया उसमें। उस सोसाइटी का स्टैंडर्ड, किस स्टैंडर्ड से, देखो कोई सोसाइटी में एक ही वॉचमैन चलता है, उसका कोई कंपनी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कोई भी आदमी को एक वॉचमैन का यूनिफॉर्म पहनाकर जो है 4,000 में भी वॉचमैन, 6,000 में भी वॉचमैन ले आते हैं, इधर ही रहो, खाओ पियो और वॉचमैन बन के रहो। डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी। तो वो सोसाइटी का मेंटेनेंस अलग रहेगा एंड पॉश लोकेलिटी के सोसाइटी के मेंटेनेंस और स्टैंडर्ड और स्टेटस अलग रहेगा। जहां तुम एकदम से बैटरी ऑफ गार्ड्स को अपॉइंट किया है, जहां वेल डिसिप्लिन अच्छे कंपनी के गार्ड सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं ड्यूटीज, डेफिनेटली यू आर पेइंग इन लैक्स फॉर सच सोसाइटीज। तो द मैनेजिंग कमिटी इज एट इट्स डिस्क्रिशन टू पास अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट टू चार्ज a good amount for the second car parking. So second car parking can range up to 10,000 per month also. Please note that. अब ये सारी चीजें देखने के बाद जो है दूसरी गाड़ी रखनी है कि नहीं रखनी है, ये एक बार तो कोई भी सोचेगा, आगे जजमेंट में और सोचेंगे, जजमेंट्स देखेंगे हाईकोर्ट के, तो सोचने पर मजबूर हो जाएगा हर कोई कि भाई नहीं, अपनी जरूरत जितनी है। एज राइटली सेड, माय फर्स्ट सेंटेंस ड्यूरिंग द लास्ट सेशन वाज टू ओन अ कार इज अ बेसिक नेसेसिटी एंड नॉट अ स्टेटस सिंबल। मैंने कहा था, याद है आपको? तो स्टेटस सिंबल ना दिखाकर अगर बेसिक नेसेसिटी बोल के चलते हैं तो दुनिया हरी ही हरी है। लेकिन अगर मेरा तेरा, तेरा मेरा, मैं बड़ा तू बड़ा करते बैठेंगे, और ये अगर रूल लागू होता है, मैनेजिंग कमिटी प्लेज द कार्ड्स वेल एंड पासेस अ रेजोल्यूशन, चलो ये झगड़े ही नहीं चाहिए, अपने आप सब लोग एक्स्ट्रा गाड़ियां निकालेंगे और हम लोग जो है पहला अपने पार्किंग को सिक्योर करके जो अच्छा हमारा रेट देगा, हमारे ट्रेजरी में 2 पैसे आएंगे। आप समझ रहे हो? आपको अभी एक बात बताती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग टाइम पर मेंटेनेंस नहीं देते एंड जो दे रहे हैं उन्हीं के पैसे से सारे खर्चे चल रहे हैं। कभी कभी वो मेंटेनेंस रिकवर करने में 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं। तो उस फंड के ऊपर का इंटरेस्ट का तो लॉस सोसाइटी भुगत रही है ना, वो कहीं ना कहीं भरने के लिए ये एक ऑप्शन भी है सेकेंड कार को चार्जिंग बनाने का, चार्जेबल बनाने का। कहीं पर तो वो नुकसान भरना है, सोसाइटी तो चलानी है, खर्चे तो रोज के निकलेंगे। सो द मैनेजिंग कमिटी इज हैविंग इट्स ओन डिस्क्रिशन, साइकिल पर कितना, 2 व्हीलर पर कितना, 4 व्हीलर पर कितना, अपना स्टेटस, अपना लोकेशन, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से मैनेजिंग कमिटी को पावर टोटली है कि अपना जो भी है चार्जेबल पर मंथ का रेंट जो है उसको जो है वेल इन एडवांस लेने का। So now coming to, can a member park his tourist vehicles in the space allotted to him? एक क्वेश्चन था, पिछली बार भी था। देखिए, अगर आप अपना ओनर बोल के यूज कर रहे हो पार्किंग स्पेस और 2-3 टूरिस्ट गाड़ियां ला रहे हो, वो गलत ही है। आप रेसिडेंट हो, आपका एक फ्लैट है, आपके फ्लैट को एक अटैच्ड एम्यूनिटी, एक अलॉटेड कार स्पेस है, आप अपना पर्सनल गाड़ी ऑलरेडी उसमें लगा रहे हो, फिर आपका टूरिस्ट कंपनी है, आप 2-3 गाड़ियां जो है बिल्डिंग के अंदर ले आ रहे हो, उसने लगाया तो मैं भी दिखाता हूँ, मैं कम नहीं बोल के अगर आप ये कर रहे हो, वो गलत ही है। लेकिन अगर आपके पास एक ही कार है जो आप टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए यूज करते हो, विच इज स्टैंडिंग इन योर नेम, विच इज परचेस्ड इन योर नेम, आप बेशक अपना पार्किंग में लगा दो ना गाड़ी, कौन रोकेगा? यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द एम्यूनिटी विच इज committed to you by the managing committee, by the builder at the time of selling that particular flat where you are staying, with the unit which you are enjoying, the residential unit which you are enjoying. Now coming to the point again कि गाड़ियां उठती है रोड पर से, गायब हो जाती है, शॉपिंग करके आने तक मूड बहुत अच्छा रहता है, शॉपिंग करके आने के बाद रास्ते पर से गाड़ी गायब, उसके बाद मूड बिगड़ जाता है। तो ये होता क्यों है? बिकॉज गाड़ियां इतनी हो गई है बॉम्बे में
Parking is not only an issue for a headache for the society to manage and maintain and organize, but it has by large become a big question for the BMC authorities also. A few months back, or a couple of years back, before the present Commissioner of Bombay took charge, during the tenure of Shri Praveen Pardeshi ji, he took a very brilliant move. Though a strict move, but he took up a very brilliant move as a Commissioner of Bombay. जरूरत है कहीं पर थोड़ा सा डंडा उठाना जरूरी है, एंड वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव केडर के लोग कर सकते हैं, वो पावर है उनके पास. सो व्हाट डिड ही डू इन व्यू टू गिव अ ब्रीथ टू द ट्रैफिक एंड पेडेस्ट्रियंस and to instill discipline among the private car owners who are parking their cars to both the sides of the road. माने बस का जाना मुश्किल, गाड़ियों का जाना मुश्किल, ट्रैफिक जाम, चलने वालों के लिए तकलीफ, ट्रैफिक पुलिस को भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में चैलेंजेस आने लगे. ये परिस्थिति है बॉम्बे में. अभी कोविड के वजह से गाड़ियां कम दिखती है, वरना कोविड से, कोरोना काल से पहले तक तो यही पोजीशन था कि ऐसे चलना पड़ता था लोगों को, कहाँ से जाऊं और कहाँ से निकलूं. तो ये सारा ये जो ओवर जो हो गया था कार्स का, तो इसके वजह से जो है इन्होंने एक डिसीजन लिया कि अगर इस तरीके का उल्लंघन होता है 314 सेक्शन बीएमसी एक्ट का and 381 encroachment and nuisance, causing encroachment, causing nuisance by parking at the sides of the road so as to cause a traffic jam, सीधा गाड़ी को उठाया जाए. 200 रुपए की पेनल्टी, 1000 रुपए की पेनल्टी से नहीं चलेगा. परदेशी सर ने बोला 10,000 का ठोक दो पेनल्टी सीधा. अब ये करना ही पड़ेगा. ही इवन प्रपोज दिस. जब गाड़ी को वापस लाने के लिए 10,000 देना पड़ेगा, ये पीनल एक्शन जब बीएमसी लेने लगेगी, तो पता चलता है पब्लिक को उस समय कि भाई हम जो कर रहे हैं वो जरा अति कर रहे हैं. सही में ये अपने एक्शन के वजह से लोगों को बहुत ही दिक्कतें आ रही है. बट आई मे रिपीट, बीएमसी कैन लेवी अ फाइन up to rupees 10,000 on offender if the car is considered as encroachment on the road. Please mark my words. 6,000 to 7,000 तक का उनका एक चला है टैरिफ फॉर लग्जरी कार्स, और छोटे गाड़ियां एल्टो वगैरह जो होती है उसके लिए 1000. According to the Motor Vehicle Act, only traffic police can take action against unauthorized parking and impose the penalty. The traffic police also now are in a mood to raise this penalty amount to 10,000 rupees. Mr. Pardeshi also has said further that this is a move in a right direction to penalize the unauthorized. Similarly, when there was हॉकिंग जोन था एक कुछ साल पहले, अगर आप लोगों को याद है, हॉकर्स हॉकिंग जोन के ऊपर काफी न्यूज आते थे. नॉन हॉकिंग जोन में हॉकर खड़ा है, उसको उठा के ले जाते थे उसका सामान आके, और 10,000 का पेनल्टी लगा देते थे. तो वही मूव अभी कार पार्किंग के लिए आ रहा है. आप लोग जरा ये बात दोस्तों समझ लीजिएगा. मीनवाइल बीएमसी will have to also appoint contractors for parking lots. These will be, क्योंकि रोज झगड़े कौन करेगा, गाड़ी ले भी जाओ और जनता की गाली भी खाओ. इसलिए अभी बीएमसी ने मूड बना लिया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करो, एंड उनको जो है वो ऐसे लोग रहेंगे जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे, एंड दे विल बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर अनऑथोराइज्ड पार्किंग. The BMC will provide contractors with towing vans, and उनको जो है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल उनके साथ जो ही भी है वर्कआउट करके उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, जिधर अनऑथोराइज्ड पार्किंग दिखा उठा लो उसको. तो इस तरीके से कई दिक्कतें आ रही है. जरूरत से ज्यादा गाड़ियां सोसाइटी में हो या कहीं पर भी हो लाने के वजह से. अभी अपार्टमेंट में आने वाली दिक्कतों में जैसे मैंने बोला, अनऑफिशियल पार्किंग है, देन विजिटर्स पार्किंग है. टेनेंट्स का हक है एक एग्रीमेंट के अनुसार, एक घर भाड़े पर लिया है, 2 घर भाड़े पर नहीं लिया है. टेनेंट को ये अपनी मर्यादा समझना बहुत जरूरी है. मैं एक घर का भाड़ा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो मेरे को एक गाड़ी का पार्किंग मिला है, मैं दूसरा गाड़ी लाना, लालच करना गलत है, वो भी मुफ्त में सोसाइटी के पार्किंग एरिया पर.
बहुत स्पष्ट बात है, लेकिन ये सच्चाई है। वो पार्किंग पूर्णतः सोसाइटी की प्रॉपर्टी है और बताए बगैर बस गाड़ी गेट खोलकर जो है नई गाड़ी लेकर आना, अंदर ऑलरेडी पुरानी गाड़ी पड़ी है, तो टेनेंट्स को अपना जो भी है ये थोड़ा सा मर्यादा जानना एंड लीव एंड लाइसेंस के रूल्स के हिसाब से ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किए बगैर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेस्ट पार्किंग जो रहता है अभी, लेट अस टॉक अबाउट गेस्ट पार्किंग। 25% जो मैंने बोला विजिटर या गेस्ट पार्किंग, डीसीआर रूल्स के हिसाब से 25% ऑलरेडी पहले से चलन अभी चलते आ रहा है। देर इज अ मूव टेकन टू रिड्यूस इट टू 5%। जो मैंने बुलेट पॉइंट से डिस्कस किए थे उसमें ये बात अपने की है। अब एक और बात जो शुरू में होस्ट ने भी कहा और मैंने भी इस बात को कहा था कि बिल्डर कैनॉट सेल ओपन स्पेस parking. Once he sells the house, he cannot make money on open and stilt parking, was what we have discussed even last time during the first session. So now उस पे थोड़ा सा मुझे प्रकाश डालना है आप लोगों को। According to RERA Act 2016, covered garage space can be sold separately by the builder. Please understand friends, covered I am saying, covered garage, build up garage जो रहता है अच्छे से किया हुआ, वो जो है वो सेल कर सकता है। However, open or stilt parking spaces clearly defined as a part of common society area, like just like lobbies, staircases, elevator, garden, etc. He cannot sell that. These become the property of the society as soon as it is registered and as soon as the occupancy certificate is issued by the municipal authority in favor of the residents and the builder. तो महारेरा के तहत कवर्ड गैरेज जो है बिल्डर्स को जो है वो छूट दी गई है। कुछ बहुत ज्वलंत प्रश्न है सोसाइटी के मामले, पार्किंग के मामले में, हम लोग थोड़ा सा उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। एक तो मैंने पूछा आपको कि हाउ डू यू कीप ट्रैक ऑफ द न्यू व्हीकल्स विच आर एंटरिंग, मल्टीपल कार पार्किंग को कैसे कंट्रोल किया जाए। जो गाड़ी का, एक तो पहली बात सिक्योरिटी हैज टू बी विजिलेंट, सिक्योरिटी को बिल्डिंग का कार जो है पहचानना आना चाहिए, बाहर का कार पहचानना आना चाहिए। एंड अगर फिर भी अगर कोई गाड़ी समझ लो अगर धूल झोंक कर आपके आंखों में ऑफिस बेयरर्स के अंदर घुस जाती है तो मैनेजर को उसका आरसी बुक मांगना जरूरी है। दूसरे दिन ऑफिस में बुला लो, सर आपकी ये गाड़ी आई है, इसके पेपर्स हमारे पास नहीं है, आप जरा आरसी बुक दिखाएंगे, आप कौन से फ्लैट में रहते हो, आपका तो ऑलरेडी एक है, तो आप ये गाड़ी कैसे ले आए सर। इमीडिएटली उसको बोलिएगा दूसरे दिन ही गाड़ी निकालिए, हमने इसको एंट्री दी नहीं है, ना हमारा पार्किंग स्टिकर है। थोड़ा सा जब प्रेस्टिजियस पोजीशन लेना चाहते हो आने वाले कमिटियों में तो थोड़ा गट्स भी दिखाना जरूरी है। यू हैव टू बी फर्म टू इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट द लॉ। इफ यू विल फील कि बाबा मैं किससे झगड़ा क्यों करूं, मेरे को 2 गाली मिलेगी, मेरे को 2 थप्पड़ मिलेंगे, मेरे को नहीं करना ये सब, मैं तो अच्छा सेक्रेटरी, मैं तो अच्छा चेयरमैन बनना चाहता हूँ, तो आप घुसो ही मत मैनेजिंग कमेटी में। इट इज अ चैलेंजिंग जॉब, यस इट इज अ चैलेंजिंग जॉब। इसमें कई बार जो है फ्रिक्शन होने वाला है रेसिडेंट्स के साथ, बच्चे मानते नहीं, घर में अपने बच्चे जो है सब एक तरह के होते नहीं, कोई बच्चा बहुत डिसिप्लिन रहता है, कोई बच्चा जानबूझ के पेरेंट्स को टेंशन देने वाला रहता है। सेम इज द केस इन सोसाइटी ऑल्सो। सो इट इज फॉर द मैनेजिंग कमिटी टू ऑन स्पॉट टेक एक्शन व्हेन द एनक्रोचमेंट और ट्रेसपास इज डन by the residents of the society. You have to take action. If you are holding a chair, you have to show that readiness to correct the mistake. If someone has done the mistake and mischief, I would say. Is the parking area considered as FSI? Very important question. इसी के ऊपर सब लोग confuse हो जाते हैं। Open stilt parking, visitor car parking and basement parking are not included in FSI calculation. Please note that. Can I cover my parking or use it as a storage? I said no, you cannot do that because it is for parking purpose. It cannot be used for any other purpose. The same thing I had used a different version to explain this point. आप ब्यूटी पार्लर बुटीक नहीं चला सकते, मैंने बोला था पिछली बार, if you recollect.
तो कवर अप करके आप दूसरा कोई काम के लिए वो अलॉटमेंट जो किया है उसका यूज करके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी भी तरीके से यू कांट डू दैट. हाउ मच ऑफ स्पेस इज अलाउड फॉर पार्किंग? एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड एक्ट, one car parking must not be less than 13.75 square meters. This is for four wheelers. Please understand. एक गाड़ी के लिए बिल्डर को कम से कम 13.75 स्क्वायर मीटर जगह देनी ही देनी है, और टू व्हीलर के लिए 1.25 स्क्वायर मीटर, 1.25 स्क्वायर मीटर फॉर एनी टू व्हीलर. Can a society sell members car parking? No, they can allot for a fee. They can allot, they cannot sell. It continues to remain the asset of the society. What can I do if society does not abide by parking laws? अगर खुद सोसाइटी ही गलत है, कोई अपना बहुत अच्छा रिलेशन है किसी के साथ बोल के उसके गाड़ियों को अंदर आने दे रहा है, पहली गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी आई, तीसरी गाड़ी आई, खुद ही अगर रूल्स तोड़ रहा है, then you have to approach the cooperative court for your grievance. Can a member sell or transfer the parking slot? I again repeat, no. According to the model bylaws, a member shall have no right to sell or transfer the parking slot allotted to the society. Can society collect deposits? I have said no. Bylaws restrict the society from collecting deposits. I am repeating, bylaws empower the society to collect the rents. Bylaws restrict the managing committee members from calling for a security deposit in respect of car. But some society are still doing that. I would also put that on record. How much does car parking space cost typically? Some societies, it depends on the, as I said, standard again. 100 रुपए से 10,000 तक का कितना भी महीना रेंट लेने का अधिकार सोसाइटी को है. आप ये नहीं कह सकते आपने इतना कैसा लगाया. अब आप मर्सिडीज लाओगे, BMW लाओगे और बोलेगे 500 रुपए 100 रुपए रेंट ले लो, ये तो कुछ डाइजेस्ट होने वाली बात तो है नहीं है. सो नाउ कमिंग टू हाउ डू आई इम्पोज द थंब रूल ऑन द रेसिडेंट्स, वन फ्लैट, वन यूनिट, वन कार पार्किंग. वो कौन से जजमेंट्स हैं जो मुझे इसको इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में ताकतवर बना रहे हैं मैनेजिंग कमिटी को? सो लेट्स टेक वन बाय वन. बॉम्बे हाई कोर्ट का रूलिंग है, दोज ओनिंग वन फ्लैट मस्ट नॉट बी अलाउड टू ओन 4-5 कार्स. क्लियर रूलिंग है. संदीप ठाकुर नाम के एक एक्टिविस्ट ने ये जो DCR ने 25% रिजर्वेशन विजिटर्स का पुल डाउन करने का मूव लिया था, 5% को लाने का, उसके खिलाफ जो है ये PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था. एंड हियरिंग दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड बाय संदीप ठाकुर, बॉम्बे हाई कोर्ट सेड that families should cross check if there is enough parking space in the housing society that they are living in before they get the other car. ये नहीं है कि धड़ाधड़ गाड़ियां लाते जाओ. ये जजमेंट दिया था डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस दीपंकर दत्ता एंड जस्टिस GS कुलकर्णी. इन्होंने एक कंसर्न किया था कि इट हैज टू बी, द कोड हैज टू बी यूनिफॉर्म, देयर हैज टू बी अ यूनिफॉर्म पॉलिसी इन महाराष्ट्र with regards to designated parking space for vehicles. तो इसमें क्या है, उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ियां लेना ही बंद कर दो. Reduction in purchase of new cars is needed. You can't permit one family to have 4 to 5 vehicles just because you can afford it. इतना क्लियर जो है ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट ने किया है. आपके पास अनाप शनाप पैसा है, आपको लेना है, आप कहीं पर दूसरा कुछ कर लो, लेकिन गाड़ियां लेना बंद कर दो. गाड़ियां जो है बिल्डिंग में डंप करना छोड़ दो. यू शुड क्रॉस चेक इफ देयर इज इनफ स्पेस. अगर फिर भी गाड़ियां लेना है तो पार्किंग स्पेस वाला अपना घर देखो, खुद के बंगले बनाओ, उसमें 10 पार्किंग वाला बंगला बनाओ और 10 गाड़ियां रखो. यहाँ तक क्लैरिटी जो है जजमेंट्स में दिया गया था. फ्रेम पॉलिसी टू प्रिवेंट फैमिलीज फ्रॉम ओनिंग 4 to 5 cars without owning parking space, said Bombay High Court to the government. The court said that the BMC's decision to fine people ₹10,000 for parking, जो प्रवीण परदेशी जी का जो इनिशिएटिव था,
on the road despite the presence of a parking slot nearby has to be strictly implemented. क्या होता है, हमें मालूम है कि हम एक एरिया में गए हैं किसी काम से और थोड़ा सा आगे 1-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे पार्किंग है, बीएमसी का दिया हुआ. बाय बीएमसी हैज गिवन एटलीस्ट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे मिनिमम 146 पार्किंग जोन्स है. 146 कार पार्किंग जोन्स ऑलरेडी फंक्शनल बाय द बीएमसी. फिर भी हमें रोड पर लगाकर शॉपिंग करके आना है, तो बीएमसी क्या करेगी? हाईकोर्ट ने बोला इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो. ये मालूम रहकर भी कि थोड़े से दूरी पर ही पार्किंग का जो है ऑथराइज्ड जोन है, फिर भी अगर रोड के दोनों तरफ अगर गाड़ियां खड़ा करके पेडेस्ट्रियंस को, आने जाने वाले ट्रैफिक को चैलेंजेस दे रहे हैं लोग, और वहां पर पार्किंग क्यों नहीं करना है? क्योंकि 1 घंटे का पैसा भरना पड़ता है ना. 1 घंटे का पैसा भरने का चुकाने के लिए जो है रूल तोड़ के रोड किनारे लगाकर 15 मिनट में शॉपिंग करके हम लोग आ जाते हैं. कौन देखेगा, कौन उठा ले जाएगा? 15 मिनट में वी विल वाइंड अप. तो ये एटीट्यूड के वजह से जो है वो 146 स्पॉट्स जो है वो कुछ सोच के सरकार ने, गवर्नमेंट ने ऑथराइज किए हुए स्पॉट्स दिए हैं जहां 30,000 गाड़ियां, 30,000 कार्स कैन बी पार्क्ड, अराउंड 4,000 टू व्हीलर्स का पार्किंग स्पेस है. लेकिन पब्लिक को मॉल के सामने ही टेढ़ा मोटर बाइक, काइनेटिक स्कूटी लगाना है और अंदर घुसना है. वो टेढ़ा इस तरीके से लगाना है कि आने जाने वाले पे धड़क जो है लगते रहे, तकलीफ होती रहे, गाड़ियां पिटती रहे, गाड़ियों को स्क्रैचेस होती रहे, तेरे वजह से मेरी गाड़ी खराब हो गई, झगड़े शुरू हो जाए. सो वी आर ओनली नॉट एक्चुअली कोऑपरेटिंग द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड रेगुलेशंस and are getting beyond limit. In fact, we are inviting trouble. The people who are doing these things of getting 4 cars, 5 cars, expenses of altogether squarely, I mean, are multiplying for them only ना. फिर वो इंश्योरेंस पॉलिसी होए, फिर वो सर्विसिंग गाड़ियों का होए. एक गाड़ी रखिए, शान से रहिए, अच्छे से रहिए. दिस इज व्हाट द हाई कोर्ट इज सेइंग. फिर भी ज्यादा रखना है गाड़ियां तो बंगले बांध लीजिए, बंगले में बेसमेंट में 10 गाड़ी का पार्किंग कर लीजिए, या कुछ जो करना है अपने ओपन प्लॉट में कीजिए. बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर एक फ्लैट है तो एक पार्किंग ही रहेगा. दूसरा पार्किंग के लिए यू हैव टू बी इन रो. आप कतार में हो, रुकिए, आपको लॉटरी सिस्टम से नंबर निकला मिलेगा. सो दीज आर द जजमेंट्स. दिस दीपंकर दत्ता एंड कुलकर्णी का जजमेंट बहुत ज्यादा जो है मायने रखता है. इस थंब रूल को अगर सोसाइटी में लोग सुन नहीं रहे हैं, यू हैव टू से हम जो है गलत. क्योंकि मैनेजिंग कमेटी का ये क्या होता है, करो नेकी करो और दरिया में डालो. कितना भी अच्छा सोसाइटी का काम करो, सुनना तो मैनेजिंग कमेटी को ही है. इसमें कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने हमारे सोसाइटी के लिए इतना अच्छा किया, इतने साल से हमारा ट्रेजरी संभाला, यू हैव डन सो गुड फॉर अस. ये तो कोई बोलेगा नहीं. ये तो कमिटी में जो अगर रहेगा तो उसको 2 बातें तो सुननी ही है. तो इसलिए जो है प्लीज नो योर लिमिटेशंस प्रॉपरली एंड इम्पोज देम इमीडिएटली इन योर सोसाइटी एंड शो दैट यू कैन एडमिनिस्टर योर सोसाइटी इन अ बेटर मैनर. So with this, I end today's topic for parking, disciplines in parking, how to be followed, how the encroachment can happen. One more important thing about encroachment, how is it done in societies. कभी क्या होता है कि लोग जो है पहली गाड़ी को जो है रख के दूसरी गाड़ी ले आते हैं, फिर पहले गाड़ी के ऊपर जो है धूल मट्टी जमा होने तक वो भूल ही जाते हैं पहले गाड़ी को. It turns into a scrap vehicle and continues to occupy the space of the society. तो सोसाइटी मैनेजमेंट को और मैनेजर को, सिक्योरिटी को यह भी देखना है कि इस तरीके के खटारा गाड़ियां जिसे कहते हैं, इस तरीके के जो डिस्पोज होने लायक गाड़ियां जो है, ये गाड़ियों कितनी है और ये कितने समय में निकलेंगी. इससे बिल्डिंग का लुक भी खराब होता है और अनावश्यक जगह जो है वो पकड़कर जो है लोगों को जो है ये दिक्कतें जो है देने लगती है. दिखाने के लिए लोग जो है दिखाने के लिए 3-3, 4-4 गाड़ियां रखेंगी ना. वो गाड़ियों का
टाइम पर पॉलिसी भरेंगे, ना उसका सर्विसिंग करेंगे, ना उसके ऊपर का धूल मट्टी झटकेंगे, तो ये तरीका सोसाइटी में रहने का नहीं है. डिसिप्लिन हैज टू कम फ्रॉम योर होम. Discipline has to come from the managing committee. Discipline has to be imposed by everyone from the top to bottom level, by the chairman, by the secretary, by the office bearers, by the manager, up till the guard. So with this, I end my today's session regarding parking, and we have understood parking from all the angles, I suppose. And over to you, Hemanji. एडवोकेट केतकी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, उसके लिए स्पेशल धन्यवाद आपका. Thank you, thank you. ओके, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए. हेमंत मिर्जी का एक प्रश्न है, व्हेन अ प्रॉपर्टी टैक्स इज लेविड फॉर ए स्टिल्ड पार्किंग, देन कैन द बिल्डर सेल दिस टू मेंबर्स फॉर ए कंसिडरेशन? Additionally, he asks, are we to conclude that these states are built using FSI? आप आंसर करेंगे कि मैं आंसर करूं मैम? I have already stated this, but आप करो जरा तो इनको थोड़ा, because I have already stated कि open and stilt parking are devoid of FSI. That is what I had mentioned just a few minutes back. So. ठीक है, हेमंत मिर्जी साहब के लिए ये उत्तर है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से कोई भी प्रकार का मालकाना हक या लेने या बेचने या लीज या गिफ्ट वगैरह वगैरह का हक किसी कीमत पे नहीं मिलता है. और स्टिल्ड पार्किंग, पोडियम पार्किंग वगैरह वगैरह, दे नेवर एवर कंज्यूम एफएसआई. अगर एफएसआई कंज्यूम किया हुआ का डिटेल्स चाहिए तो आपको सैंक्शन प्लान्स निकालिए आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, उसमें आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई 100 फ्लैट बनाए हैं, 100 फ्लैट 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स बनाए हैं, तो 100 का मतलब 50,000 स्क्वायर फीट कवर अप किया उसने, वही आपका एफएसआई है. लेकिन अगर उसमें अगर ये लिखा हुआ है कि स्टिल्ड के लिए 50,000 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा कवर कर लिया है, तो देन इट इज देयर. बट डीसीआर रूल्स डू नॉट अलाउ स्टिल्ड एरियाज, पोडियम एरियाज to consume FSI. That is not allowed. He additionally is asking, in our society, not all states are levied property tax by MCGM. How come? How come means वो MCGM को पूछ लीजिए आप और कंप्लेन कर दो कि भाई ये एरिया का आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा रहे हो, आप उसका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा रहे हो, लेकिन बाकी में रिफ्लेक्ट होता है. एक को छोड़ोगे तो आपको रेवेन्यू शॉर्टफॉल पड़ेगा, वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल बाकी लोगों से वसूली करोगे, तो आप इसमें लगाओ ताकि बीएमसी को कुछ रेवेन्यू आ सके और हमको छोटा मोटा 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे का रिलीफ मिले मुंबई कर्ज को. देयर इज अ क्वेश्चन बाय संजय कुलकर्णी. इन स्पाइट ऑफ रजिस्ट्रार एग्रीमेंट बाय बिल्डर along with parking plan, is builder allowed to convert the given parking into commercial shops? Ma'am? No. User is not allowed to be changed, is what we had already discussed last time, Hemant sir. इसका मतलब इनका प्रश्न का शायद ये भी मतलब निकलता है कि भाई एक पार्किंग है मेरे पास में, उसको कमर्शियल यूज कर लेते हैं. जैसे मेरे पास स्टिल्ड की पार्किंग है तो चलो किराने की दुकान लगा लेते हैं या गैरेज ओपन कर लेते हैं या कुछ ऐसे पब वगैरह ओपन कर लेते हैं वगैरह वगैरह. तो ये तो बीएमसी का कानून का तो उल्लंघन है, एमआरटीपी का भी कानून का उल्लंघन है और फायर एक्ट का भी कानून का उल्लंघन है. तो नॉट अलाउड. बिल्डर और सोसाइटी दोनों को आप कोर्ट कचहरी के में कानून कायदे के अंदर आप उसके रिलीफ मांग सकते हैं. एक प्रश्न है विक्रांत जिंदाल साहब का, इज एन लॉयर. उनका प्रश्न है, मेंबर्स आर पार्किंग देयर कार, वन मेंबर हैज गिवन हिज फ्लैट ऑन लीव एंड लाइसेंस एंड नॉट स्टेइंग इन सोसाइटी, नाइदर पार्किंग हिज कार. कैन सोसाइटी refuse car parking to tenant but society permitting members for second car parking and not to tenants? Ma'am, over to you. Sir, I have said even last time and in today's session that, Vikrantji,
uh, this is your question which we are answering, that if a person has raised his flat on rent and he's paying the non-occupation amount of 10% toward as out of the maintenance, so nobody can refuse his tenant a parking. Please understand that you have to challenge this. If this is the case, you have to challenge and fight for your rights. The landlord has to ensure that his parking which was allotted to him is either enjoyed by him or by his tenant. Only if they give up, then it is the society who will decide upon who will be taking up that space. इनकी जानकारी के लिए एक और भी चीज हम खुलासा कर दें, थोड़ा एक्स्ट्रा डीप में अगर जाना है और कानून कायदे का दरवाजा खटखटाना है, तो क्योंकि टेनेंट सोसाइटी का नॉमिनल मेंबर है, दो नॉमिनल मेंबर को कोई राइट्स नहीं दिया हुआ है, पर स्टिल देयर इज ए कंसेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप चूंकि 10% ओनर से 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस ले रहे हो ओनर से, आप उस टेनेंट के बिहाफ में ले रहे हो, उस टेनेंट को आपने एडमिट किया हुआ है फॉर्म नंबर 11 और 27 से लेके, और आपने 100 रुपया उसको लेके उसका नॉमिनल मेंबरशिप फीस भी दिया हुआ है। तो टेनेंट इज एंटाइटल्ड टू पार्क एंड ऑल्सो टेनेंट इज एंटाइटल्ड to file legal proceedings also against the society. Consumer court. Mr. Mitesh has a question. Our society has sold still parking for 2 lakhs to a member. Where can I raise a complaint? आपके जानकारी के लिए मिथेश साहब हमारे पहले एक स्पीकर रह चुके हैं. He is an ordinary activist और बहुत अच्छा बोला उन्होंने, and it is his webinar video has taken thousands and thousands of hits, और ये पूना के हैं. तो इनका प्रश्न फिर से दोहराता हूँ. तो इनके सोसाइटी ने स्टील पार्किंग बेच दिया 2 लाख का, 2 लाख रुपए में. तो किसके पास कंप्लेंट करें इसका? Where can I raise complaint for has sold stilt parking to a member? ना the same thing ना, meet as meet 15 minutes जो लिखा है. हाँ जी, हाँ जी. Our society has sold a stilt parking for 2 lakhs to a member. Where can I raise a complaint? It is a registered society, Mitesh ji. The managing committee has taken over. Yes. Then please redress your grievance before the cooperative court. He can. Also, consumer court is another thing, and a consumer redressal forum is also there. But the cooperative court का straight away क्या हो जाता है कि cooperative court का एक तो फोरम इज वहाँ हियरिंग भी आपकी जल्दी होती है, एंड अपील में अगर आप हाई कोर्ट को आ रहे हो अगेंस्ट वट एवर, आई मीन आप जा रहे हो या द अपोनेंट इज गोइंग, सो देन इट इज द हाई कोर्ट हु इज गोइंग टू डिसाइड. सो आई थिंक कोऑपरेटिव कोर्ट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. Madam, does he have option? Yes, both of the approaching options. the criminal court as well? थोड़ा Trespass ट्विस्ट के करके लिए क्या हम क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं क्या? जा सकते हो आप, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में भी क्या होता है आजकल, ये अभी एक पुलिस का एक ऐसा हो गया है कि यू नो ये चीटिंग का हो सकता है केस, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी का मैटर है तो एफआईआर लेते नहीं है, सिविल मैटर है. दिस इज द जनरल लैंग्वेज दैट दे यूज द पुलिस अथॉरिटीज. सिविल मैटर है, इसलिए आप हमारे पास मत आइए, आप जो करना है कोर्ट से ऑर्डर ले आइए. सो इन दैट केस कोर्ट. पुलिस स्टेशन में एक सिंपल अगर पुलिस वाला कंप्लेंट नहीं लेता है, मानो अपने दोस्तों के लिए थोड़ा सा इसमें खुलासा कर देते हैं, पुलिस वाला कंप्लेंट नहीं लेता, बोलता है भाई आप ज्यादा से ज्यादा बड़बड़ करोगे तो आपका एनसी ले लेंगे, ये एनसी की कॉपी एनसी करके पकड़ा के भेज देते हैं. तो वो आपके मन के शांति के लिए है कि मैंने पुलिस, लेकिन आपके ही चक्कर होने वाले हैं. उससे तो सीधा सीधा एक है, approach the cooperative court, file your suit over there, your application, and get a stay on the transaction between the builder and the wrong member to whom your parking is sold. Get an injunction on that deed, sale deed regarding your parking allotted, your stilt parking which you have lost, and ask for restoration of parking. We should also discuss about the criminal angle in this matter. Yeah. Sequence ऐसा है कि 2 लाख रुपया लिया, बेच दिया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया,
वगैरह वगैरह किया, और आप पुलिस स्टेशन गए, नहीं लिया कंप्लेंट, एनसी लॉन्च किया, एनसी का कॉपी लेकर आए, एक आध हफ्ता, दो अटैच हफ्ता करो। वेट, दो तीन हफ्ते वेट कर लो, सोसाइटी को नोटिस दो, अपना प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दो क्रिमिनल कोर्ट में, और आगे बढ़ जाओ उसके अंदर। एक बार प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हो तो रिperकशंस उसके क्या होते हैं? नेक्स्ट टाइम क्या सोसाइटी वो पार्किंग किसी और को बेचेगी, या और कभी भी किसी को बेचेगी पार्किंग? नहीं नहीं, तो प्राइवेट कंप्लेंट करने के बाद रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी एप्लीकेशन करना पड़ेगा इनको। प्राइवेट कंप्लेंट में मिसलिनियस एप्लीकेशन फॉर रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी आएगा, एंड वहां पर जो है इनको एक बार रिस्टोर कर देते हैं, अगर इफ द जज इज गुड इनफ to hear the application and pass a verdict in his favor, the society will not do such things, it will not repeat these mistakes. so filing a criminal complaint also will serve as a precautionary measure to the Measure. society managing committee कि भाई Yeah. आप Yes. लोग अपना गलत सलत काम करने का जो फितरत बना रखा है वो मत करो। Correct. Am I correct, ma'am? Yes. Okay. Now there is another question by Chetan Garje. In society, there are 6 row houses and 32 flats. My question is, row house owners have one parking inside their row house. रो हाउस जैसे आपने बोला ना, बंगला ले लो वगैरह वगैरह कर लो, तो बंगला तो नहीं है लेकिन रो हाउस है, और एक पार्किंग रो हाउस के अंदर दिया हुआ है, रैंप वगैरह जैसे होते हैं कई बार, तो रो हाउस में दिया हुआ है। वन ओनर ओन्स 3 cars and parks 2 in society area. He does not pay for the rest 2 cars. Can he be allowed? Because some cars owner don't get parking. Also all 6 row houses, उनका एडिशनल क्वेश्चन ऐसा है कि ऑल 6 रोज ओनर्स हैव नॉट सबमिटेड आरसी पेपर्स, एंड ऑल्सो पार्किंग टू व्हीलर्स नॉट पेइंग चार्जेस, दे से दे आर parking in adjacent area which is a slot between 2 row houses. Madam, over to you. Sir, as I've rightly said, it is for the, is there an association, resident welfare association or a managing committee in this colony? He has used the word society. He has used the word Society. So it is a registered society. There has to be a managing committee. So the discipline has to be implemented by the office bearers, right? You have to approach them and you have to show them the rules and say कि yes, this is the thing. And अगर बाकी सब लोग जो कॉमन स्पेस में गाड़ियां लगाए हैं उनको भी फ्री में कार अगर पार्किंग दे दिया है, यू हैव नथिंग टू से। लेकिन सब बाकी लोग दे रहे हैं और ये इंसान जो है नहीं दे रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली रेज एन ऑब्जेक्शन कि भाई इसको ही क्यों चार्जेस जो है नहीं लिए जा रहे हैं। ओके, उन्हीं का एडिशनल क्वेश्चन है, इन वन फ्लैट बेटा son stays in other building but parks his vehicle in his father's society. Can he be stopped from parking inside his father's society? Last time only we have covered the similar question. It was regarding two brothers, if you remember, sir. And yes, you cannot do that because only the car parking space belongs solely to the society, and it is the discretionary power of the society to use the car parking space only for the resident members. It is nowhere responsible for a neighboring society's car or any other society's resident's car to be parked inside the premises. It will not be held responsible, nor is it under any obligation to take the responsibility of a car which is not belonging to the society. So you can definitely take an objection there. Why is this car there? You have to raise an alarm. Technically speaking, ma'am, बेटा जो है वो फादर का फैमिली मेंबर है। फादर का कार अगर नहीं है तो वो समझने बात है, लेकिन वैसा लिखित फादर को भी देना है ना। Let us take on a separate angle on this thing. कि बैकग्राउंड नंबर 327 में XXV है शायद वो, और यार XXV है जो भी है वो, उसमें बेटा तो है वो फैमिली मेंबर कहलाता है, फादर का फैमिली की डेफिनेशन में आ गया, भले अलग रह रहा है वो, लेकिन मेरे पिताजी के सोसाइटी में मैं उसका फैमिली मेंबर हूँ,
मैं अपने फादर की तो जगह पे, चलेगा, फैमिली मेंबर है तो आर्ग्यूमेंट तो वो हम लोग ले सकते हैं कि मैं बेटा हूँ उसका, मैं हम्म, अपने बापूजी के कार पार्किंग में अलाउ करता हूँ, सोसाइटी को नहीं रोकने वाला। अगर सोसाइटी बोलता है कि तुम वहां पर रह रहे हो, मैं जापान में रह रहा हूँ या धारावी में रह रहा हूँ, उससे सोसाइटी का क्या लेना देना। जो बायलॉज में फैमिली मेंबर को जो प्रिविलेज दिया हुआ है प्रिविलेज दिया है, ब्लड रहने रिलेशन का, एंड फैमिली मेंबर्स को दिया है। हाँ, तो आई थिंक बट बट द फादर इज सपोज टू इन्फॉर्म द सोसाइटी कि ये मेरा बेटा यूज करेगा, एक लिखित में एक लेटर दे के रखे तो ज्यादा अच्छा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है दूसरों के दिमाग में भी नहीं आएंगे। मैंने जानबूझ के इस चीज को आर्ग्यू किया बिकॉज जी। टेक्निकली सोसाइटी का अधिकार नहीं बनता है ना तो बेटे को पूछने का कि भाई क्यों पार्क किया, ना तो बापूजी को पूछने का कि भाई कैसे अलाउ कर दिया पार्किंग का। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट क्या बोलता है, भाई बेटा हो, बापूजी हो, ब्लड रिलेशंस आर और प्रिविलेज्ड। यस, तो सोसाइटी इस मामले में नहीं जीत पाएगी, इन अदर वर्ड्स ठीक है। टेक्निकली। सपना राउत का एक प्रश्न है, इफ सोसाइटी इज नॉट रजिस्टर्ड and one member of society encroached in another member's parking and in spite of various notices is not vacating that parking space, and society committee is also not taking cognizance of that, where can he complain? पुलिस Society for not registered trespass. one member. You have to approach to the local police and file a complaint for trespass over your property. Yeah, the space allotted to it. It's not your property. The space allotted to you. You have to say this is my parking space and he has trespassed over my property. My space allotted. I need my space. अगर आपके ठीक है, पास व्हीकल है तो, हाँ, पहली बात, अगर व्हीकल है तो। ओके। अमिताभ सिंह साहब का एक प्रश्न है, if one person owns two flat, does he get two parking? He has amalgamated the flats. Yeah, it is a some rule, one car, one flat. So two cars, two flats. कुणाल गाड़ा साहब का एक प्रश्न है, there are few members in society who have purchased parking from builder in 2004. Now they don't want to park the car and garage is empty. Purchased parking from builder in 2004, पार्क कर नहीं रहे, गैरेज खाली पड़ा हुआ है, they use car parking space now to park scooters. Car park charges is 500 per month and bike is 150 per month. Should they still be paying the car charges as they have been allotted a still parking but don't have a car? They are paying 150 for bike which is parked in four-wheeler space. See, it is for you to inform them that you don't have a vehicle and you have surrendered the space as a common amenity to the society. And therefore, you are not going to pay for the thing. The society is free to raise it on rent and make money. You have to show them their limitations and their rights. As I have told you already, Mr. Kunal ji, कि ये डिपॉजिट नहीं ले सकती बट दे कैन रेज इट ऑन रेंट फॉर अ फी। तो मेरी गाड़ी नहीं है, मैंने उसको सरेंडर कर दिया है। फिलहाल जब तक मैं गाड़ी नहीं लाता हूँ, आप इसको जो करना है कर लो, मैं पार्किंग के रेंट नहीं दूंगा। ये तो आपको कहना है। हम इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, पार्टिसिपेंट जी फ्रेंड्स के जी लिए, जी क्योंकि हमारा मकसद ये है कि भाई अगर ट्विस्टेड नॉलेज हम एनालाइज कर सकें तो शायद हम छोटा मोटा प्रॉब्लम्स उधर ही सॉल्व कर सके। वेस्ट क्वेश्चंस लाइक अदर थिंग्स शायद अवॉइड कर सकते हैं क्या वैसा। अभी अगर मैंने सोसाइटी में मेरा एक पार्किंग है तो क्या मैं पार्किंग स्पेस का पैसा दे रहा हूँ या मैं गाड़ी का पार्किंग का पैसा दे रहा हूँ? व्हाट इज डिसाइडेड इन ए जनरल बॉडी मीटिंग? कार पार्किंग 500 रुपया, स्कूटर का 150 रुपया। मैं कार नहीं पार्क कर रहा हूँ, मैं स्कूटर पार्क कर रहा हूँ, तो मुझे 500 रुपया देना है या 100 रुपया 150 रुपया देना है? क्योंकि मैं गाड़ी का पार्किंग का पैसा दे रहा हूँ, जगह का पार्किंग का पैसा नहीं दे रहा हूँ। तो क्या समझना चाहिए मैम इस चीज को? आपको ये डिफरेंशिएट करके अपने ऊपर रोज, अगर टू व्हीलर है तो टू व्हीलर के रूल के हिसाब से पे करना है।
फोर व्हीलर अगर नहीं है तो नहीं करना है आपको फोर व्हीलर के हिसाब से. यू हैव टू गिव इट इन राइटिंग टू द सोसाइटी कि मेरी जो है चीज मैं उसका दूर दे रहा हूँ. आई एम रिस्पेक्टिंग योर जनरल बॉडी डिसीजन एंड आई एम अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स एंड दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू पे. तो जनरल बॉडी में टिपिकली हम क्या डिसाइड करते हैं? कार पार्किंग 500 रुपया, बाइक पार्किंग 150 रुपया. करेक्ट. अब मैं क्या पार्क कर रहा हूँ वहां पे? मैं कार पार्क करूंगा तो That is मुझसे to be 500 लेना आप, करेक्ट. और अगर बाइक पार्क करूंगा तो 150 लेना. तो आपको सोसाइटी क्या ये बोल सकती है क्या कि आपको एक स्टिल्ड पार्किंग अलॉट किया हुआ है और स्टिल्ड पार्किंग का 500 रुपया है? दस द टेक्निकलिटी ना. अभी हमें जनरल बॉडी में आगे से क्या पास करना चाहिए? गाड़ी का 500 रुपये लगेगा या पार्किंग स्पेस का 500 रुपये लगेगा? नहीं, the thing is second car parking is chargeable. This is what the rule says. If you are parking your second car, तो गाड़ी के पार्किंग का चार्ज लगेगा. स्पेस इज बाय द सोसाइटी. उस पर जो कमाना है वो सोसाइटी को कमाना है. स्पेस का चार्ज नहीं लगेगा. जो आप व्हीकल जिस तरीके का रख रहे हो आपको वो चार्ज देना पड़ेगा. तो इज इट नॉट प्रॉपर फॉर द सोसाइटी टू चार्ज फॉर द पार्किंग स्पेस? क्योंकि आप पार्किंग पे नंबर भी दे रहे हो. यस, तो वो सोसाइटी के मैनेज करेक्ट. वो सोसाइटी के मैनेजिंग ऑफिस को जो है सोचना है अगर इसको टू व्हीलर का अगर स्पेस चाहिए तो इसको जबरदस्ती स्टिल्ट देकर इससे बड़ा रकम लेना नहीं है. तो कैन बी पास ए रेजोल्यूशन कि पार्किंग स्पेस ऑफ सो एंड सो विल बी चार्ज सो एंड सो. अब Yes. वहां पे आप अपना कार पार्क करो या स्कूटर पार्क करो. Yeah, that would be better then. So in that case, if Instead a of member says differentiating. कि या मेंबर अगर ये बोलता है कि मैंने तो स्कूटर पार्क किया हुआ है तो मैं 150 दूंगा, लेकिन अगर सोसाइटी के नहीं, नहीं. रेजोल्यूशन में बायलॉज में ये अगर लिख देते हैं, हम अमेंड कर देते हैं कि पार्किंग की जगह का इतना पैसा लेंगे, कार का नहीं, वो कार का या स्कूटर का वर्ड का वर्णन नहीं करते हैं. शुड वी बी डूइंग दैट मैम? No, sir. Actually, it is for the managing committee while passing the resolution to make things very crystal clear कि जहां पर टू व्हीलर की पार्किंग है वहां टू व्हीलर ही लगेंगे, जहां पर फोर व्हीलर का पार्किंग स्पेस बनाया है वहां फोर व्हीलर ही रहेंगे. और इसके हम जो है ये रेट्स फाइनलाइज कर रहे हैं. तो आप टू व्हीलर लगा रहे हो तो आपको वो लागू हो रहा है. आपको टू व्हीलर में ही आपकी गाड़ी लगानी है. अगर मैनेजिंग कमेटी खुद अगर शफल कर रही है टू व्हीलर को जबरदस्ती अगर फोर व्हीलर में ले रही है, इनके सवाल में जो दिख रहा है, तो दैट इज एक्चुअली फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द मैनेजिंग कमेटी देयर सर. दे कैन नॉट एडजस्ट दिस. I was trying to impress upon our friends and to you also कि why does not society not take parking space money when you are making a parking? जैसे बोलते हैं ना कि पार्किंग नंबर 11 हो गया, तो वो 11 पार्किंग नंबर का स्पेस का पैसा कितना लेना है? उसको इतना लेना है. आप उसमें कार पार्किंग या स्कूटर पार्किंग का वर्ड नहीं डालना है. टू व्हीलर का हो. हाँ, तो अभी टिपिकली आज के दिन पे हम ये मिस्टेक करते हैं कि भाई टू व्हीलर लिख रहे हैं या फोर व्हीलर लिख रहे हैं, तो व्हाई डोंट आई चार्ज एज पर द पार्किंग नंबर? नॉर पार्किंग नंबर इतना का जो है इतना चार्ज है. बस आप उधर जो लगा रहे हो. हाँ, अगर आपने अगर आपने नहीं भी लगाया मानो वहां पे या साइकिल भी खड़ा कर दी अपने कार की जगह में, और अगर आप ये बोलते हो कि नहीं साइकिल का स्पेस तो फ्री है, साइकिल का तो कोई पैसा लेना नहीं है, तो वो उससे वो बच नहीं पाए. नहीं बच पाएगा. हालांकि साइकिल को भी लेने के लिए नॉर्म्स दिए गए हैं. साइकिल का भी चार्ज लगेगा. साइकिल का पार्किंग अलग करना है, टू व्हीलर का अलग करना है, फोर व्हीलर का अलग करना है. तो डू यू थिंक वी शुड अप्रोच दिस पर्टिकुलर पॉइंट to the Pune commissioner so that he makes appropriate decisions and gives a guideline to the managing committee members to pass resolutions to that effect. So that is for Fatima ji to do. Yes, I was just going to come to her because her next question is next to her. Yes. She is a fighter lady for your information. Yeah. और वो जाके पुणे कमिश्नर में और मंत्रालय में जाके लोगों को आड़े हाथ लेने में उनका काफी एक्सपीरियंस है. एंड आई अप्रिशिएट दैट. Hats off to her, Fatima. Hats off to her. We are proud of you there. के लिए जो एजीएम का एक्सटेंशन का जो क्राइटेरिया हुआ जी,
हमने जो लेटर वगैरह लिखे कमिश्नर को और मंत्रालय में, तो इन्होंने जाके अब जो भी कुछ किया, कड़क वर्ड्स यूज किए, तो हमने तो मांगा था एक्सटेंशन 30 सितंबर तक का, पर अल्टीमेटली दे गेव एक्सटेंशन अप टू 31st 31st मार्च. March. So this is solely just due to Fatima ma'am's effort. Thank you, Proud sir. of you, Fatima. Really a Thank you. commendable job. Thank you, ma'am. Okay, Fatima ma'am का क्वेश्चन Please है, throw some light on double parking. Owner's vehicle parked, another flat owner's relative comes and parks, thereby restricting the owner's vehicle from coming out. Though the parking is wrong, this is encroachment. It has to be strictly dealt with by the office bearers, the manager and the security, Fatima. Yes, और वो जो ma'am. 5,000 वाला जो क्राइटेरिया है वो भी वो इफेक्टिव आ जाएगा. 5,000 वाला है अंडर द बाईलॉज 164 के तहत तो पिनलाइज कर दो. मैम हमारा क्वेश्चन है, अगर हम लोग वे बैक थोड़ा पीछे जाए, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का कल्चर आने लगा, जी. पहले तो सबके बैठे घर होते थे. जब शुरू में फ्लैट्स बनने लगे तो छोटे छोटे फ्लैट्स होते थे, समझो 85 जो पुरानी सोसाइटी है 100 फ्लैट्स, और इतनी पार्किंग होती नहीं थी, तब किसी के पास कार भी नहीं थी, ज्यादातर लोग पैदल, बस या 2 व्हीलर होती थी. लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बिल्डर से अलॉट करके फ्लैट लेते वक्त समझो पार्किंग ले ली है, तो उनको अलॉट हो गई है. और अभी फ्लैट्स है सपोज 100, लेकिन कार पार्किंग सिर्फ 20-25 ही है, बिकॉज वो अपार्टमेंट इतने छोटे हैं कि इतना स्पेस बचा नहीं है कि 100 कार्स लग सके. तो इसमें तो वो तू मैं होती ही है. बाकी क्योंकि अभी सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाने से सबके पास गाड़ियां आ गई, किसी के पास 2 आ गई, किसी के पास 3 गाड़ियां आ गई, तो इससे थोड़े क्लैशेस भी होते हैं. तो इस सिलसिले में आप कुछ लाइट थ्रो कर सकते हैं कि ऐसे सिलसिले में जो पुरानी सोसाइटीज है, जहाँ पुराने सोसाइटीज डेफिनेटली, इसीलिए तो वो रीडेवलपमेंट में जा रही है. जो पुराने सोसाइटीज है वो उनके पास आज जगह के स्पेस के जरूरत की वजह से भी और पार्किंग के इशू को लेकर भी दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है कि दे आर हैंडिंग ओवर द सोसाइटी टू द बिल्डर्स फॉर कमिंग अप विद गुड टावर्स एंड एम्पल स्पेस फॉर पार्किंग. क्योंकि एक क्या होता है, आजकल के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से बीबीएमसी एक्ट के तहत, डीसीआर के तहत बिल्डर इज अंडर कंपल्शन टू शो कि कितने यूनिट्स बना रहे हैं और कितना पार्किंग दे रहा है, पहला वो बताओ प्लान को सैंक्शन कराते समय. लेकिन पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था ना, तभी तो सारे पुराने जो बिल्डिंग्स है वो रीडेवलपमेंट में जाने की वजह भी तो मेन वही है, ताकि अपने बेसिक जरूरतें जो है कि कंफर्टेबल स्पेस ऑफ लिविंग को हो या पार्किंग को हो, बेटर अपने को लिविंग जो है मिल सके. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दीज थिंग्स आर कमिंग अप नाउ. फातिमा मैम के लिए एक छोटा सा खुलासा है, बाकी अपने दोस्तों के लिए भी. जी. जो आपने वर्ड यूज किया स्टेटस, अब पहले अपने पास स्टेटस नहीं हुआ करता था कि भाई चलो छोटा मोटा स्कूटी वूटी लिया, काम चल गया, निपट गया. लेकिन उन दिनों जो बैंक का जो लोन का रेट था कार व्हीकल वगैरह, इट वुड बी टचिंग अप टू बिटवीन 18 to 21%. या आई एम टॉकिंग ऑफ लेट अस से 1980 to 1990 के बीच के आसपास की बात करते हैं. और उन दिनों किसान जो इंदिरा विकास पत्र हुआ करता था वो 5 साल में पैसे डबल कर देता था. तो आप सोचो कि 20% के ऊपर रिटर्न मिल जाता था. आज के दिन में क्या हो रहा है कि बैंक आपको 6.5% में कार लोन दे रही है. आपको नहीं भी चाहिए तो भी आप टेम्पटेड हो जाते हो, इसको बिंज शॉपिंग बोलते हैं. आप टेम्पटेड हो जाते हो, जैसे आपने मॉल में गए, खरीदना है 5 किलो आटा, लेकिन जब आप एक बार अंदर घुस गए तो 4-5 पैकेट बिस्किट के भी आ जाते हैं और चॉकलेट्स के भी आ जाते हैं और वो छोटे मोटे कुरकुरे और ये सब मिसलेनियस भी आइटम खरीद लेते हैं. इट इज ए थिंग. अब ये 6.5% के ब्याज में जब कार खरीद सकते हो, तो एज वेल एज आप डेफिनेटली 4 पार्किंग उसी फ्लैट में कर सकते हो. इट इज अनदर मैटर टू से कि मेरा स्टेटस बढ़ गया. आपको मैं ये बता दूं कि आई एम हैंडलिंग सम मैटर्स ऑफ सम बैंक. आपका स्टेटस नहीं बढ़ा हुआ है, 1 आध साल आप यूज करोगे, इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे, बैंक आके गाड़ी जब्त करके ले जाएगा. वहाँ स्टेटस आपका खत्म होता है, लेवल पे आ जाता है. तो ये एक मुख्य कारण है गाड़ी ज्यादा होने का आज के दिनों में. इट वाज एन गवर्नमेंट मूव टू हेल्प द ऑटोमोबाइल सेक्टर, नथिंग एल्स. बट दिस पर्टिकुलर थिंग वाज नॉट फोरसीन कि भाई ठीक है आप गाड़ी सस्ता कर रहे हो या महंगा कर रहे हो,
ब्याज इंटरेस्ट एकदम कम कर रहे हो। लो कम पे दे रहे हो। अभी बैंक एम्प्लॉइज है, उनको सिर्फ और सिर्फ 2% पे कार लोन मिल जाता है। अगर आप बैंक एम्प्लॉय हो तो आपको 2% पे पैसा मिल जाता है, आप कार खरीद लो। और अगर घर भी लेना है तो भी, और पब्लिक के लिए जितना है उसे 3% पे कम में मिल जाता है। तो आप कार भी खरीदते जाओ, लेकिन जगह है ही नहीं, तो ये फोर्स ही नहीं किया गया हुआ था। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू हेमंत सर। Yeah, thank you, Fatima. I would like to हेलो thank you once again, Fatima ji, for all the हेलो efforts थैंक यू सर, you थैंक do. यू सो मच। Okay. हेलो Yeah, hi, One Vasant moment, Sena. Vasant Hello, Sena good ma'am. evening. गुड इवनिंग Wait, गुड इवनिंग गुड इवनिंग wait, वेट Vasant, wait, please wait. Let me Wait, complete wait. the We are to going serially. चैट ओके बॉक्स क्वेश्चन पहले लेंगे हम। श्रीनिवास कांबले साहब का एक क्वेश्चन है, इफ बिल्डर सोल्ड गार्डन फ्लैट इन सोसाइटी एंड बिल्डर्स सोल्ड फ्लैट विदाउट पार्किंग, नाउ सोसाइटी asks me that in premises no common area. I am not able to understand this question, ma'am. Can you? It's really मैं confusing. आप मैं बोलिए, बताऊं। आप बोलिए। हाँ मैडम, हमारे सोसाइटी में 25 फ्लैट्स है और उसमें 24 पार्किंग है। उसमें 2 पीछे के फ्लैट जो है स्टील्ट के, वो गार्डन फ्लैट बनाए हुए हैं, तो उसके वजह से पार्किंग तो एक्चुअली ये गलती बिल्डर की है, आर्किटेक्ट की है, या अभी सोसाइटी बोल रही है कि यहाँ कॉमन स्पेस ही नहीं है, क्योंकि उनको गार्डन फ्लैट नहीं, वो उन्होंने जो एरिया लिया है कारपेट प्लस वो जो गार्डन का है, वो मेंबर्स का समझ रही है। तो ऐसे में एक्शन किसके खिलाफ ले सकते हैं? को अभी तो बिल्डर पीछे तो गार्डन निकल फ्लैट गया है ना। तो हाँ यस, निकल बिल्डर गया तो है। निकल गया है अभी, एंड बिल्डर अलॉट्स। मैंने पिछली बार 78 एंड 78A डिस्कस किया था, अगर आपको याद है। हैव यू अटेंडेड द लास्ट सेशन? यस यस, उसमें से वो सोसाइटी 78, को ही बोलिए ना, बोलिए बोलिए। वही सोसाइटी को ही ये परमिशन है कि वो अलॉट करे किस तरह से अपने मेंबर्स को ये पार्किंग फुलफिल डिस्क्रिशन कर है, सके। मैंने बोला था डिस्क्रिशन है, चेंजेस करने का या उसी को कंटिन्यू करने का वगैरह। यस, हाँ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि वो जो गार्डन फ्लैट है एक्चुअली वो गार्डन नहीं है, वो सोसाइटी की ही प्रीमाइसेस है। विच इज नाउ और मैं कन्वर्टेड सोसाइटी इनटू को गार्डन वही फ्लैट। Okay. यस यस, तो मैं तो सोसाइटी, हाँ ठीक है, we'll take up the next तो मैं question. सोसाइटी को ही बोल रहा हूँ। Mr. Srinivas, you please send your question to Ketki ma'am directly on her Yes, mobile number. I have put her number on the yes, sir. chat box. We have to take our next Yes, sir. questions also. Thank you for joining us, sir. Yes, yes. Okay, thank There you. is another question by Singh Ranjit. If builder allotted 2 parking to 1 flat owner, whether it is illegal or illegal? Allot किया हुआ है, बेचने का वर्ड यूज नहीं किया यहाँ पे। उसके प्लान में अगर एक फ्लैट को 2 पार्किंग अगर उसने सैंक्शन करा लिया है तो ये इज राइट ना। उसका जो सैंक्शनड प्लान है, अगर वो दिखा रहा है 1 यूनिट के लिए वो 2 पार्किंग दे रहा है, उसके पास एम्पल जगह होगी, उसका प्रोजेक्ट बड़ा होगा जिसमें 2 गाड़ियां बैठ सके एक फ्लैट ओनर के। सो इन अदर वर्ड्स, बिल्डर चाहेगा तो एक फ्लैट के लिए वो 4, 6, 10 पार्किंग भी अलॉट कर सकता है। इन्होंने वर्ड जगह यूज होनी नहीं किया चाहिए कि बस। सोल्ड, बिल्डर ने सोल्ड किया, ऐसा वर्ड नहीं लिखा नहीं, हुआ है। अलॉटेड अलॉटेड अलॉटेड। और बाद में जब सोसाइटी बनती है तो अपना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करके वो अलॉटेड स्पेस वापस ले लो आप। ले भी सकती है। Okay, there is another question by Advocate SP Singh. What is the remedy if the allotted parking is too small? Is there a mandate for parking measure of parking to be allotted? I You have have already explained, but I will request you once again to explain for the benefit of our members. See now, under the national car parking norms, I have mentioned 13.75 square meter is the minimum area which is required for a 4-wheeler. So you have to see whether your car parking area is falling within this parameters, size wise. Okay. 13.75 square meters.
Now we are talking about car. That is why I'm telling you the same measurement, which is the norms, as per the norms established. So please check out with your skilled person to see whether it is really small or it is correct. The municipal laws, जो भी local municipal laws है, PMC ले लो, BMC ले लो, NMMC ले लो, they have got their own criteria for the space size for respective parking vehicles. एक विक्रांत साहब का another question है. He feels that there is a court judgment parking on rotation. Example, so members, car parking space only for 50 members could not get the judgment. ये तो सब bylaws में भी लिखा हुआ है रोटेशन पार्किंग का. कोई कोर्ट का जजमेंट भी है क्या मैम? I'll have to find out now. Last time I have not referred to any such judgment, and even today there isn't like that. I mean, we are relying upon. We'll find out and we'll put it on the group. We have noted down your name. We'll send it to you in case we come across. As it is also your society bylaws which you are bound to follow also mentions कि parking rotation basis पे ही करना है. तो अगर जजमेंट नहीं भी है तो भी आप bylaws का सहारा तो ले सकते हैं. I don't think so. I've come across any such judgment, sir. अब मेरे रिसर्च में तो नहीं आया है ये judgment. Okay. There is another question by Sanjay Kulkarni. Builder allowed to use scooter and cycle parking for car parking allotment. इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, वही चीज है, डिसिप्लिन फॉलो करने की चीज है जो नहीं हो रहा है. बिल्डर ने अलाउ किया है ना. सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स इसका मतलब अभी तक चार्ज लिए नहीं है संजय जी. Okay, I have put he's asking number. I have put it in the chat box for everybody to check out. Okay, next. Finished. We are done with. Okay, now we will take one-to-one questions. If friends have any questions, please speak up. Unmute yourself. Vasant Sena ma'am, you had a question for Ketki ma'am. Thank you, Shanti. Thank you. First of all, let me thank you. Very informative. I was listening patiently. I just wanted to know, one owner of a flat, she has got two flats. Now, one flat of that, her one flat, she has gifted to her grandson. So, along with the flat, she has given the car park also, gifted the car parking also. Is it allowed? See, if the flat is the flat has an additional amenity as an allotted car parking space. So whenever her grandson comes, he is entitled to park his car there. As long as he is not staying there, he is staying elsewhere. And the flat is lying vacant. Definitely, the space is again under the society is the custodian of the space. No, what I wanted to know is whether the flat is gifted to the grandson. Whether the car parking also can be gifted? No. You can't gift it. Okay, you cannot create third party right. I said last time, you cannot create transfer by way of sale or gift deed a parking slot at all to any third party. We are clear on it. Yes. Very fine. Very fine. But any judgment on this, KTG? As far as right now, we are going by the rules and regulations which are set out for the parking. In case we come across any such judgment, we'll give it to you. Please. Yeah, we have your number. Yeah. Mr. Prakash Gangauli. Sir, my question is that since the formation of the society, I have not been allotted a parking slot, and I have been repeatedly asking them to allot me a parking space, wherein other members have been given 2-3 parking spaces. So not a single space has been given to me. I have approached the registrar as well, and I have put up a inspection for 89A also. But this is something that they are selling the parking space to people who are outside the society and earning more money from them. So I'm a member here, but I'm not been given the parking space. How do I avail this facility wherein I'm staying in this society? Yeah, can you please guide me? Yes, sir. We had a consumer forum matter last time. We had discussed Surendra Shetty's matter, if you remember.
if you have attended the last session. Yes, I was there. Yeah, so I had referred to Surendra Shetty's matter, wherein he had approached to the Consumer Redressal Forum and taken an order in his favor. And the builder or the society, they were directed to allot a car parking space within a period of 1 month. This is reference to Mr. Surendra's matter in the High Court. Surendra Shetty, yeah. Okay, I'll just go through the discussions. In the Maharashtra Consumer Redressal Forum, not in the High Court. How do I refer it from the Maharashtra, with the name, if you can put it? Yeah. I will give you if you are there in the group now, you please send me a message. I will send you the details of the verdict, the citation. Thank you so much, madam. Thank you so much. Thanks a lot. It will be very helpful. Thank you. Yeah. Just send me this query Prakash, on my personal chat. Ram's number is already given in the chat box. Yes, you yes, note sir. it down and coordinate accordingly. I'll do that definitely, sir. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Okay. Any other participant? We have got maybe Sir, a few I have minutes a before we question, conclude. please. Yeah, Fatima said. Okay, ma'am. Now, whatever we have discussed in your first session, also it has been really wonderful, and today's session also is very good. Thank you so much for this knowledge sharing, and thanks to Hemant sir for creating this platform for us. My question is that till now all this onus about the parking, the space, everything falls on the office bearers, that is the managing committee. But if the managing committee is only not following the law, not following the rule, because till today in all our sessions, we have most complaints which is always against the managing committee. And the members are harassed because their appeals or requests or whatever, they are not heard. And any member, any flat owner is a common man. No, but everybody is not having legal knowledge. Some people are old, some people don't know how to go over the procedures. So all these other issues are there. So in that case, when the managing committee only is having a laid back attitude in addressing the problems. Appeal to Consumer Court. Appeal to Consumer Court. I have answered this question, darling. We have taken up this question. Thank you. I will add to it. Ritki ma'am. Yes, sir. फातिमा मैम, ऐसा है कि हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज, काफ़ी नहीं मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज आप 4 अलग अलग कोर्टों में रिलीफ मांग सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कैन मैनेज टू, आई एम यूजिंग द वर्ड मैनेज लीगली, आई डू नॉट से इलीगली, हाउ यू मैनेज द अफेयर्स, योर प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा. अब 4 कोर्ट कौन से हो गए? एक तो क्रिमिनल हो गया, एक सिविल हो गया, एक कंज्यूमर हो गया और एक कोऑपरेटिव हो गया. बट इट कैन बी डन. It can be done. And we are all paying maintenance, right? We are paying maintenance, so we are consumers. Yes. Simple thing. We are paying maintenance for the facilities, and if we are not getting the facilities, so definitely drag them to the consumer court. फातिमा, मैं आपकी जानकारी के लिए एक और भी चीज बता दूं मैं. जैसे आपने बताया कि हम एमसी के पीछे पड़े रहते हैं. पर आप ये भी देखिए कि 100 मेंबर के सोसाइटी में अगर इलेक्शन होता है तो कितने लोग कॉन्टेस्ट करने के लिए आगे आते हैं. मेरा ऐसा तजुर्बा है कि एवरेज ऑन 8 से 10% लोग ही सामने आते हैं. अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बाकी लोग जो 90% लोग जो बचे, क्या हो गया? उनको क्यों आने को तकलीफ क्यों हो रही है? और अगर तकलीफ हो रही थी तो अभी मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ, जैसे मुंबई में वर्ड यूज करते हैं ना, खुन्नस, फ्रस्ट्रेशन, एरोगेंसी, वो क्यों निकालना है? आपको काम करना नहीं है? जो काम कर रहा है उसके खिलाफ आपको मुहिम छेड़ना है हर चीज के लिए. अरे भाई डॉक्यूमेंट दो मेरे को, अरे ये वाउचर कितने का बना. आपका अधिकार में है भी या नहीं है ये सब चीज पूछने का मैनेजिंग कमेटी को. मैनेजिंग कमेटी कौन है? गवर्निंग बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, आपका प्रतिनिधि है. सिर्फ आप, जैसे मानो अगर कोई अनिल शर्मा बोलता है मेरे को ये वाउचर नहीं मिला, आपने ये खर्चा ठीक से नहीं किया, बट आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है साहब ये सब पूछने का. आपको जो पूछना है, जब आपको बैलेंस शीट मिलेगी ना तब आप पूछिए. एजीएम के टाइम पे प्रोविजन है, अकाउंट संबंधित कुछ पूछना है तो ट्रेजरर को, सोसाइटी को, सेक्रेटरी को लेटर लिखो, प्रोविजन करो, पूछो उससे. और फिर भी ज़्यादा तकलीफ हो रही है
अपना पैसा खुद का खर्चा करके आप री ऑडिट करवाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप री ऑडिट करवाओ। क्या क्या तकलीफ क्या है उसके अंदर, कौन रोकता है आपको? लेकिन सिर्फ छेड़खानी करने के लिए या आप दूसरों को परेशान, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, हाँ, दूसरों को परेशान करने के स्मूथ लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, तो अगर उसको यही पूछा जाए कि अनिल भाई, आपने मैनेजिंग कमेटी को एक बरस में कम से कम 20 लेटर लिख दिए, आपने डिप्यूटी रजिस्ट्रार को 20 कंप्लेंट भी कर दिए, 40 हो गया, क्या आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था क्या सोसाइटी के इलेक्शन के लिए? तो वो क्या जवाब देता है मैम आपके हिसाब से, फातिमा मैम? अनिल भाई बोलता है कि मैंने 20 कंप्लेंट किया सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को, और सिमिलरली मैंने 20 कंप्लेंट किया डिप्यूटी रजिस्ट्रार को भी, तो मतलब 40 कंप्लेंट मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में उसने किया। अब उससे अगर ये पूछा जाए कि सर आप खुद मैनेजिंग कमेटी में एनरोल होने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या आपने इलेक्शन के दौरान नॉमिनेशन फॉर्म भरा था या नहीं भरा था? और अगर उससे ये पूछा जाए कि आप इतना शोर कर रहे हो तो इलेक्शन फॉर्म क्यों नहीं भरा था, तो क्या जवाब मिलना चाहिए उसके तरफ से? और अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो डू यू डिराइव एनी राइट टू क्रिटिसाइज योर मैनेजिंग कमेटी? वो आदमी जो सही कर रहा है चेक्स पे, बैलेंस शीट पे, कितनी जवाबदारी है? जो कुर्सी पे बैठा है उसी की बजाओगे ना मैडम? बराबर सही। जो अधिकार पे नहीं है आप उसकी बजा नहीं सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है, बराबर है सर। हाँ, तो वाई, क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम सिर्फ मैनेजिंग कमेटी के पीछे पड़ते हैं? एक कहावत है, करने वाले के पीछे ब्रह्म राक्षस। मैडम थोड़ा एक्सप्लेन भी करिए हमारे दोस्तों के लिए। See now, I would like to say something. Actually, managing the affairs, इधर यहाँ एक का घर संभाला नहीं जाता अच्छे से, और जहाँ एक कॉलोनी को, एक बड़े कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को, फिर वो 25 लोगों का ही क्यों ना हो, 50 लोगों के मेंबर्स का ही क्यों ना हो, 1000 हो, 500 हो, तो we have to consider the thing that the people working at the other end as office bearers are loaded with the pressure, the work. एंड अगर हम उनको थोड़ा सा समझ कर, अगर थोड़ा कोऑपरेट करें, क्योंकि हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, ना कि हम उनको टारगेट करें, और अगर हम उन लोगों को मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके काम में रोड़े ना अटकाए, समझे पहले। अभी जैसे छोटे छोटे बातों पर जो है, जैसे हेमंत सर ने बोला, अभी इश्यूज होते हैं कि मच्छर हो रहे हैं, स्विमिंग पूल का पानी क्यों नहीं निकाला? कहीं पर पड़ा है कि स्टैंडिंग वाटर नर्चर्स द मस्किटोज। अरे पर ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज गंदे पानी पर होता है। जो स्विमिंग पूल बिल्कुल ही यूज में नहीं है, जो फिल्ट्रेशन जहां प्रोसेस चल रहा है, जो नीट एंड टाइडी मेंटेन किया जा रहा है, एक खुन्नस जो आपने बोला हेमंत सर अभी, तो करने वाले के पीछे फ्रस्ट्रेशन निकालना है। मुंबई कर Yes. I pride myself in using some languages of Mumbai. तो एक खुदनस जो है, सही बोल रहे हो आप, एकदम सही बोल रहे हैं। एक तो ये लोगों को जब मौका दिया जाता है तो ये लोग काम करेंगे नहीं, और जब उसमें फेल हो जाएंगे तो या तो ये लोग कहेंगे यार मेरे को टाइम नहीं है इतना सब सोसाइटी का काम करने के, इसलिए मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। या तो कहेंगे कि मैंने फॉर्म भरा था, मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो गई, या इलेक्शन में चुन के नहीं आए इसके लिए खुन्नस निकालोगे बाकी लोगों के प्रति? वो तो गलत ही है ना। प्रश्न फिर से वही आता है घूम फिर के, केतकी एडवोकेट केतकी को और एडवोकेट फातिमा को और बाकी जो हमारे प्रोफेशनल बंधु हैं आज के वेबिनार में। मेरा प्रश्न यही आ रहा है कि 100 मेंबर की सोसाइटी में सिर्फ 8 से 10 लोग ही नॉमिनेशन, इलेक्शन के नॉमिनेशन फॉर्म क्यों भरते हैं, और बाकी 90% लोगों को क्या हो जाता है? स्पून फीडिंग चाहिए सबको, बने बनाया चाहिए, एफर्ट्स लेने नहीं है, उनको रिस्क नहीं लेना है, दे डोंट वांट रिस्क लेना नहीं है, करेक्ट। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं मैनेजिंग कमेटी की कुर्सी पे आ गया तो मेरे ही तरह और कोई बंदा निकल आएगा मेरे को टारगेट करने के लिए। करेक्ट करेक्ट, वो एक डर होता है। मेरे पास हैसियत और औकात नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, है ना? Yes, मैं अपनी बीवी को, अपने पति को, अपने बच्चे को नहीं संभाल सकता, मैं फैमिली को क्या संभालूंगा? ऐसा हो जाता है। आई मीन इट इज ए हाइपोथेटिकल थ्योरी,
कि why do I do not contest elections? Why do I derive sadistic pleasure? Yeah, why do I derive sadistic pleasure by keeping on complaining against authorities and against managing committee members? cribbing against the people who are working. वही आदमी लिफ्ट में चढ़ने के टाइम पे लिफ्ट के कोने में थूकता है, पान थूकता है। सीढ़ी से अगर उतरा तो पान डाल देता है, वही आदमी कचरे का पीस लेगा और सीढ़ी से नीचे डाल देगा, खिड़की से बाहर फेंक देगा, और वही आदमी बोलेगा साफ सफाई नहीं केलं हो तुम्ही। बराबर है मैनेजिंग कमिटी का चेयरमैन उधर साफ सफाई करने के लिए आएगा। Anyway, let us proceed further. We have got maybe 5 odd more minutes. Vasant Sena ma'am, you have this microphone clear with you now? Hello? Vasant Sena ma'am? Yeah, I think, I don't know, there's some problem. Anyway, I wanted Fatima's number also. Please forward it on the group. ठीक है मैम, you send a WhatsApp message to me. I will do the Yeah, please. Yeah, please. Okay. Please. Somebody asked just now कि वो कौन से 4 कोर्ट हैं जिसके पास में आप रिलीफ के लिए जा सकते हो। I'll just repeat. All the courts start with C: Consumer Court, Civil Court, Cooperative Court and Criminal Court. हर कोर्ट में जाने के पहले अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करो, अपना विटनेसेस चेक करो, उसके बगैर और कोई भी कोर्ट पे मत जाइए। आप पैसा खर्चे करने का शौक है तो पक्का ही जाइए। That's not an issue at all. Okay, anybody else has any question before we conclude? It is nearly 9:30. Okay, there are no questions. Fatima ma'am, any last words from your side for today's webinar? Yes, sir. It's been a wonderful webinar. Madam has really covered most of the points and, answered all the questions, which were also having some grey corners in the parking issues. And both the sessions of hers has been really great. And thanks to you, Fatima, for creating this platform. Thank you. Where people like Ketki ma'am, myself, and many other learned people come and share their knowledge for the other people who can benefit out of it. Thank you, Hemanji. Thank you, Fatima, for your appreciation. We will conclude today's session. Most welcome. And I, on behalf of all the participants, thank Advocate Ketki Agarwal for both the sessions related to parking issues, और सारे लेक्चर देने के लिए और सबर के साथ में लोगों के प्रश्न उत्तर देने के लिए। So, with the permission of the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you and thank you. Bye bye everybody.